This person is telling me the secrets to his life. That was the biggest growth hack of my life. I was coming from a place, 500 rupees per month was also a struggle. Felt it that this was a point of no return. इसके बाद I'm just done. कम जब आप early bird offer निकाल रहे हो. Correct. और जो आपके loyal followers हैं. On the very first day we did the webinar, we sold around 600 tickets. Conviction that you have on the result of the product will sell so much 100%. beyond any persuasion skills. So हर एक का ना एक mechanism बना हुआ है to overcome their non-comfort zone. किसी का social media है, किसी का खाना है, कौन होगा. And if you really know कि overcome करे बिना आपका अगले लेवल पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है. पेपर पे कुछ ड्रीम्स लिखवाई थी. क्या उस ड्रीम तक पहुंच पा रहे हो? The answer is no. तो कब करोगे? So welcome to the new segment of Money Minutes and Madness, because today we have something very exciting. So far we've done about 70 podcasts maybe. And in all the episodes, the only person that you've been seeing is me. For the first time ever, we've decided to create a new segment in the podcast, and we're calling it The Rise of the Superhuman. And the objective of this series of the 3M podcast is to get the superhumans that I happen to spot around the country, and the superhumans that you happen to spot. So at the end of the episode, anytime I want you to tag a few superhumans that you see so that I can invite them on this show. The Rise of the Superhuman is a podcast series where I'm going to be getting superhumans to the show, asking them about this one question: how did you become this superhuman? And we're going to well deep into this conversation and find out the thought process, the fears, the emotions, the kind of things that went wrong in their lives, the journey that they've had, of course, but more than the journey, the things that didn't quite work in their journey due to which they became superhumans. That's what we're going to be focusing on. And today, we have a very exciting guest, the first guest ever of The Rise of the Superhuman. We have Saurabh Bhatnagar. Saurabh, welcome to the show. I'm so glad that you're here, and I'm so glad that you accepted this invitation on such short notice. You were here in Bangalore and we made this happen in just 2-3 days, and I'm so glad that you're here. So thank you so much for accepting this invitation. Very glad to have you here. Thank you for inviting me. And for the audience, interview पूरा हो चुका है. अब इंटरव्यू बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अब आप इंटरव्यू देखना. Done. Tell me, which of those habits that you have developed over the years, now that you look at it, you're like, you know what, this is that habit that changed or has changed everything for me? Yeah, I guess it is always a combination of so many things. For example, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, स्मोकिंग की बात कर रहे थे, right. कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने हल्का फुल्का वही एक से स्टार्ट होना, एसोसिएटिंग विद द कूलनेस ऑफ समबडी एल्स, राइट, यू नो. एंड पहली सिगरेट भी शायद यही होता है कि कोई और आपको खरीद के देता है, राइट. आप शायद खुद के पैसे से खरीदते भी नहीं हो. तो वही वाली चीज, राइट. I didn't even ask you if you smoked before I started going crazy about smoking. So वही थर्ड ईयर का वाला टाइम था. एंड उसके बाद जाते साथ ही हमने हमारा यूएसपी एक वेंचर स्टार्ट कर दिया देहरादून में. शायद आपने देखा होगा, जिसमें नीली टी शर्ट पहन के घर घर जाके कूपन सेल करते थे. Yes. अब क्योंकि दैट टी शर्ट वॉज अ साइन ऑफ आवर कंपनी, यू नो, द ब्रांड ऑफ आवर कंपनी, एंड आई वॉज इन देहरादून वेयर द फैमिली वॉज ऑल्सो देयर. तो वहां पे मैं देहरादून में अगर मैं 3-4 महीना भी हूँ, 5-6 महीना भी हूँ, मैं आई नेवर यूज्ड टू स्मोक, राइट. क्योंकि मेरे को था कि यू नो, पहली चीज आप अपना ब्रांड पहन के चल रहे हो, दूसरी चीज आपका फैमिली वाला भी है, पूरा सर्कल वहां पे. लेकिन दूसरा फैक्टर एक ये भी होता था कि दिल्ली में बस से जाते थे, उतरते था, सबसे पहले खोखा दिखता था, राइट. एंड वहां पे बैठ के जैसे काम कर रहे हैं, मैं गौरव, रोशनी, हम लोग साथ में वहां पे भी रहते थे. तो वहां पे काम कर रहे हैं, अगर हल्का सा भी टेंशन हुआ कि यार स्मोक कर ले, हल्का सा भी कुछ भी फील हुआ यार स्मोक कर ले, एंड देन सडनली आई हैड दिस रियलाइजेशन कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मैं काम तो देहरादून में भी कर रहा हूँ, टेंशन तो वहां पे भी हो रही है, लेकिन वहां पे आई एम नेवर फीलिंग लाइक स्मोकिंग. लेकिन यहाँ पे सिंस आई हैव द लेवरेज टू स्मोक, तो फॉर एवरी सिंगल इंस्टेंस आई एम फीलिंग लाइक स्मोक. तो दैट वाज लाइक, आई अंडरस्टूड कि ये पूरा माइंडसेट का गेम है. तो दैट डे आई डिसाइडेड नॉट टू स्मोक. इट वाज लाइक प्रोबेबली 6-7 years ago, एंड दैट वाज द डे आई लेफ्ट स्मोकिंग. मतलब एक दिन में छोड़ दिया. लोग कहते हैं ना कि वो लंबा प्रोसेस चल रहा है छोड़ने का. मतलब आई वाज नॉट, मे बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज क्योंकि आई वाज नॉट इवन अ चेन स्मोकर. तो वो वाला चीज भी है, वेरी रैंडम, लेकिन बट आई वाज एबल टू लीव इट इन अ डे. That's so awesome. Because I understood कि वो पूरा माइंडसेट का गेम है. वो मेरे को वो फील नहीं दे रहा है, राइट. यहाँ से आ रहा है कि भाई तू ले ले, शायद तेरे को वो फील मिल जाए. Correct. तो आई गेस यू नो, व्हेन वी चैनलाइज आवर माइंडसेट इन अ वे कि यू कैन कंट्रोल एनीथिंग, तो आप अपनी हैबिट्स को फिर वहां से कंट्रोल करना स्टार्ट कर सकते हो. Makes sense. And like you said, it's actually a factor of environment. Where you said, you know, when you are at your hometown, you don't feel like smoking because that's not the environment for it. But when you come back here, the environment, you've associated smoking to this environment and not smoking to that environment. So your brain adapts so quickly on these things. Correct. The problem is we don't think
if you consciously think about this, you would have realized, like you did realize, you're like, there I don't feel like smoking. Here I feel like smoking. What is happening here? Right. But the problem is people are not questioning that. Right? They're not, seeing the capabilities that the mind has into saying that, okay, this is a place for smoking. Doesn't matter if it's not about a day. It's a factor of 3-4 months that you said. Yep. 3-4 months you don't feel like smoking. But the minute you come here, in that day, you want to smoke. Right. So it's a pure association to a particular location more than anything else. Right. उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस था which worked for me. I mean, जो मैंने अपने मन में क्रिएट करा. Right. मैंने स्मोकिंग को एक बास्केट में डाला which was की कड़वा है. Right. खराब है, कड़वा है, टेस्ट खराब होता है. एंड साथ में फिर वहां पे जहाँ पे हम रहते थे यू ब्लॉक के अंदर, वहां पे बहुत सारी शेक्स जूसेस की शॉप थी. मैंने कहा अगर जाके बनाना शेक पियेंगे, मैंगो शेक पियेंगे तो वो अच्छा टेस्ट आएगा. Right. So every time I wanted to feel that, I started feeling like I went and had let's say malana shake or a mango shake कि इससे रिप्लेस करा. मतलब I don't know, how much of this is making sense, but it made sense for me that time. No, it is. And it worked for me completely. Yes. And because क्योंकि I internalize this thing कि दो बास्केट्स है, एक कड़वा वाला है, खराब टेस्ट वाला है, एक ये वाला है. Right. So again, a lot of people will listen to you when, let's suppose, you have achieved something. Right. लेकिन ये वाला प्रोसेस तो तब का है जब अपन अपनी जर्नी में स्टार्ट कर रहे थे. Right. स्ट्रगल कर रहे थे, फिगर आउट कर रहे थे कि अर्निंग करना कैसे है. Correct. तो ये उस समय की विक्ट्री है जो उस समय पे वर्क हुई थी. तो आई बिलीव it is going to help somebody. It makes sense. That's there in The Power of Habit. I don't know if you've read that book by Charles. The Power of Habit is exactly what you said. Achha. And one is the environment factor that we just discussed, and the second one is the habit replacement also. I think James Clear also talks about it. Habit replacement, where like you did, you're replacing this habit with this habit. You're associating pain, again, connecting to everything. Tony Robbins also pretty much says the same thing. Associate pain to your existing situation, associate pleasure to your new situation. And that's how the movement happens. So you associated pain and bitterness to smoking, and you associated pleasure to the other thing. And more than that, you replaced it. You said, okay, anytime I get this craving of smoking, I'm going to move towards having a shake or having that juice. So that was a shift as well. Correct. That is like giving better words to the thing that I was trying to say. No, makes sense. I'm just, correlating to, see, the reason I'm saying it because everybody reads these books. I believe somebody who comes into a personal development journey, I feel the day they attend their first workshop in their life, like I remember the first workshop I attended, that day I honestly felt like I found a secret that nobody else has. Okay. And for me, the thought was, if I can go to a place, I can see a person who is, 10 steps, 20 steps, 100,000 steps ahead of me. And if this person is telling me the secrets to his life, that was the biggest growth hack of my life. 100%. True. And I lost my mind. I remember calling Ramya from there. She was not there in the first workshop. And I didn't even have money. So my friend flew me to this place. He took me to that place and he paid for the ticket. He's like, you come and attend it. We'll see what happens. There was MMI, by the way. And for the first time when I'm seeing Mark Attram, he is talking about all these things to do with money, and I'm trying to understand what are my thoughts around money. And I'm like, shit, I've been struggling for the last 7 years in trying different things. And this didn't happen. So that I found that to be the biggest growth hack. But one thing that I've also realized is, like, this dopamine hits in. When you feel like you found this magical pill in your life, this dopamine hits in. But what started happening was, I started getting these dopamine hits by just attending these workshops. So I went from workshop to workshop to workshop to workshop. And then when I had to come back home and do the work, I didn't like the part. Okay. Right? So you go to the workshop, like dopamine hit, you love it. And you come back home, now you have to do the work if it has to change. But I started associating attending workshops is changing my life without thinking that I'm not doing anything towards it. Have you felt something like that? But I can relate to a lot of people. मैं नहीं feel करा. Right. But I see people hopping from one event to another. Yes. And when I talk to them कि हमारा वहाँ पे ये discussion हुआ था कि implement करना है. हाँ. And they're like कि सर वो तो छूट गया क्योंकि वहाँ पे मैंने ये जाके नई चीज सीखी. फिर मैं ये करने लग गया. Right. लेकिन फिर मेरे को ये दूसरा बंदा दिख गया जो कि ये करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. फिर मैं ये करने लग गया. Right. तो we have met people, let's suppose over the period of last 3-4 years, जिनका की प्रोफेशन पिछले 3 साल में 10 बार चेंज हुआ है. And that's where the focus is not there. आज वो कोच है, कल वो कंसल्टेंट है, आज वो सर्विस प्रोवाइडर है, फिर वो किसी और नई चीज के कोच है. That is like a huge problem, because in which you are seeing other people, they are being successful, doing their own thing, and now you are trying to replicate, thinking कि ये process easy है. Correct. कि शायद ये करके जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे. And they will also show you the result
जो आपके प्रीवियसली अभी करंट रिजल्ट है, लेकिन वो करंट रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने वो रातों और दिनों तक काम करा है, वो वाली चीज यू इग्नोर, क्योंकि ओनली सी कि अच्छा पिछले एक महीने में इसका इतना इनकम था, राइट राइट, लेकिन वो पिछला एक इनकम. सो इन बिजनेस द वे इट वर्क्स इज कि चीजें आपकी एक्सपोनेंशियली एक के ऊपर एक स्टैकअप होती जाती है. करेक्ट. इस चीज, ये जो काम आपने आज करा है, फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट. थिंक अबाउट इट इन दिस वे. ये लेट्स सपोज ये पॉडकास्ट 2 घंटे का जाएगा, ठीक है. अब एक नॉर्मल पर्सन है जो कि अब 2 घंटा अपना नॉर्मल वर्क में ऑफिस में वर्क कर रहा है, थिंक अबाउट इट. तो उसका जो 2 घंटे है, उसका 2 घंटे का वैल्यू उसका वो 2 घंटे का ही रहेगा. राइट राइट. लेकिन क्योंकि वी हैव रिकॉर्डेड दिस पॉडकास्ट एंड नाउ इट इज गोना गो ऑन यूट्यूब और मे बी सम अदर चैनल, तो इसी पॉडकास्ट के जब लेट्स सपोज 10 व्यूज आएंगे वर्सेस 1000 वर्सेस 1 लाख वर्सेस 10 लाख, तो इसी एफर्ट का जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है. एंड नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट इट इन अ वे कि जब मैं 10 वीडियोस बना रहा हूँ वर्सेस 100 वर्सेस 1000, एंड वो एक्सपोनेंशियली उन सब का वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है. Correct. तो बिकॉज ऑफ दैट इन बिजनेस विद कंसिस्टेंसी आपका जो रिजल्ट है वो बिकॉज ऑफ दिस असिमेट्री इट बिकम्स ह्यूज. क्योंकि जो आपके रिजल्ट है वो 1 और 1 मिलके 2 नहीं बन रहे हैं, वो 1 और 1 मिलके 11 बन रहे हैं, एंड ग्रेजुअली वो 111 बन रहे हैं. राइट. So that is how things work. No, in fact, in addition to this, other than the multiplication that is already happening when you put this out there, I'm talking about the multiplication. See, just because of the conversation, I'm picking so many things from you. And the 2 hours that we are going to be spending, it's not 2 hours anymore. It's equivalent to the last 20 years of your life, the last 10 years of your life. That also, so which means from the 2 of our perspectives, there is that value. And then it is going out to so many others. So, yeah, again, I think we were talking about this dopamine hits when it comes to attending workshops. So I'm glad that in my life, it came to a point where when I started it out itself, I didn't have money. But then I started borrowing money to attend these workshops. So what happened was, it was like cigarettes. Instead of spending on cigarettes, I was borrowing money to, attend workshops. Nothing wrong with that. In fact, honestly, that's changed my life. But the realization hit me when I realized, shit, I have to pay these people back. Right. And that time I had to do something. I'm so glad that I was forced into this situation where I had to take action. Otherwise, I would just be in this loop of, going from workshop to workshop to workshop without actually doing anything about it, because that is it's very addictive. It's very addictive to be in a personal development space. Right. And how did we get to this space? So, किधर से तो? So, I mean, एक और चीज जो आपने यहाँ पे बोला, वो force करने वाला. Right. I guess this is something that works for a lot of people. हाँ. Until and unless they are forced into something. Right. तब तक they keep on delaying it. Right. And this works in both the ways. Number one, आपके जो initial result आएंगे, जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, अब तो देखो करना ही पड़ेगा, तो then you start getting those results because that's where the commitment comes in. Number one. Correct. Number two is the way it backfires for some people is जब उनको रिजल्ट मिल जाते हैं, तो उसके बाद there is money that is sitting in the bank account, some money, and because of that they start getting complacent. कि यार अब ठीक है, मतलब अभी काम क्यों करूं, बाद में कर लूंगा, देख लेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट फोर्स, एक फोर्स चल रही थी जिसकी वजह से वो एक लेवल पे पहुंचे थे, एंड नाउ दैट फोर्स हैज बीन रिमूव्ड. तो एंड दे फील कि मैं इस लेवल पे तो हूं, लेकिन उसके पीछे का जो फोर्स था वो खत्म हो गया. So they are not going to be over there for a lot of time. Right. And because of that, they are going to always such a valid point. How have you dealt with that? I'm sure you felt it as well. Matlab, see, you've gone from being zero. I've gone through your story. I was stalking you before this thing. Matlab, aapka story I was going through, and you've started from quite literally, that $10 that you talk about to wherever you are right now. I'm sure you experienced this throughout, where one level of success you hit, and that's more money than you can imagine ever. Matlab, right now, if you look at 4 years back, would you even imagine the kind of money you're making right now? No, I mean, not possible. So I'm sure you've had multiple levels of in fact, जो मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिला था, जिसने मेरे को 50,000 रुपए पर मंथ देने का प्रॉमिस करा था, कमिटमेंट करा था, and I was coming from a place जिसमें कि 500 rupees per month was also a struggle. Right. तो वो 50,000 rupees per month ऐसा मेरे को फील आ गया था कि यार, मतलब ये कुछ खतरनाक हो गया मेरे जीवन में. नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट, एंड नाउ आई कैन गो आउट एंड हैव वो जाके रोज शाम को वी कैन हैव मोमो, वी कैन हैव मैंगो शेक, वी कैन हैव ऑल द गुड स्टफ दैट आई एम श्योर यू डिड इट आल्सो. नो, आई डिड इट. इनफैक्ट मैं मेरा 2 दोस्त अपन जाके, हमारा फिक्स था यहाँ पे रोज जाके मैंगो शेक पीना है. एक हाफ वेज मोमो आएगा, एक फुल नॉन वेज मोमो आएगा. अपन दोनों नॉन वेज वाले, वो वेज वाले, एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉट ऑफ डेज. करेक्ट. क्योंकि वो एक फील आ गया था कि अब तो सब हो गया, क्योंकि आप 500 से 50,000
it's a big jump. Right. Right. So yes, that happens ki, you tend to underestimate yourself Correct. over a period of time. Now tell me, so you hit these levels multiple times where this one income that's sitting in your bank is way more than you can imagine. Correct. How have you dealt with this thought of complacency where, because have you gotten stuck there? Yeah, वो मेरे साथ नहीं हुआ honestly. अच्छी चीज ये थी क्योंकि probably I guess the number one reason for that is कि क्योंकि वो पहला वाला जो स्ट्रगलिंग फेज था वो इतना लंबा था, Right, 4 से 5 साल का, Right. कि ये चीज समझ में आ गई है कि काम करके ही रिजल्ट मिलेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है. एंड सेकेंड इज मतलब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे कंसिस्टेंट ये वो, एंड मेरे पे खुद उस चीज का बहुत एक वैलिड आंसर नहीं है क्योंकि आई फील वेरी मच इनटू दी जोन जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स मेरे को वो हैप्पीनेस नहीं देती है. सो आई हैव रियलाइज कि मेरा जो हैप्पीनेस जोन आता है वो 2 से 3 चीजों में. एक तो मेरा काम करते हुए जिसमें कि आई एम क्रिएटिंग समथिंग. हाँ, वो वाली चीज होती है जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उसी काम का जो एक्साइटमेंट लेवल है दैट कैन डिफर. राइट. दैट वो वाला कॉम्प्लेसेंसी आ सकता है, उसके बारे में वी कैन डिस्कस. राइट. लेकिन अगर मैं उस कॉम्प्लेसेंसी की वजह से काम करना छोड़ के कुछ और करने लग जाऊं, राइट, तो फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा, फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगा. मतलब आई हैव लेट्स सपोज बीच में एक फोर्स वाला पीरियड आया था जिसमें कि कोविड वगैरह के टाइम पे ना पापा की भी तबीयत खराब हुई थी, मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, एंड आई वाज लाइक फोर्स्ड बाय द डॉक्टर एंड एवरीबॉडी कि अभी इस टाइम पे काम नहीं होना है. तो अब कुछ तो करना है, क्या करें, चल मूवी देख लेते हैं. राइट. कुछ तो करेंगे, पुरानी बकेट लिस्ट रहती है हमेशा मूवीज की. राइट. तो देखना चालू करा, लेकिन आपने फिर उसे भी एंजॉय नहीं करा. करेक्ट. फील नहीं आ रहा था कि भाई कुछ तो हो. तो वो वाला एक पीरियड रहा था. तो अपन कहाँ से स्टार्ट करा था हमने? We're talking about complacency, money complacency. So हाँ, तो मनी complacency इस वजह से नहीं आया. हाँ, एक्साइटमेंट लेवल का डिफरेंस आया है. So how have you dealt with that? So again, like, see, this is the first podcast of this Rise of the Superhuman, and very exciting because you are here, we set this up and the new space and all of that. But what is going to happen is over a span of time, let's say, it also happens that, let's assume that this episode does really well and the next episode, and this usually happens in every aspect of life. First time, some success you see, and the next episode, it's not 1/10 of the first time. 100%. And that snaps you. So how have you dealt with that? यार मतलब वो भी समझ में आ गया कि वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है. राइट. ऑनेस्टली अभी जैसे एग्जांपल, एक क्विक एग्जांपल, जब हमने फ्लेक्सिबल बनाना शुरू करा था, क्योंकि 3 साल तो उसका डेवलपमेंट था. 15 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ, लेकिन उससे पहले 3 साल से बन रहा था. राइट. तो अब आप सोचो ना, 3 साल तक जब कोई चीज बन रही है और लोगों के हाथ में नहीं है और आप उसे बनाते जा रहे हो, राइट, तो वो कितना लंबा टाइम है. करेक्ट. तो उस समय पे वी ऑलवेज वर लाइक कि यार ये एक चीज और होनी चाहिए इसके अंदर, तब ये टूल बहुत अच्छा हो जाएगा. अब ये चीज और होनी चाहिए, ये चीज और होनी चाहिए. राइट. एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर एवरी सिंगल फीचर रिलीज दैट वी वर डूइंग. राइट. लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ऐसे 200 फीचर आ चुके हैं. ठीक है, लेकिन आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट नेक्स्ट फीचर, वो 201 को लेकर rather than the 200 जिसके लिए मैं पहले से एक्साइटेड था. राइट. अभी कुछ रिसेंटली की ही बात है, मैंने बोला यार अभी तो नहीं, अभी तो बेसिक है, अभी तो बहुत एडवांस्ड होना है. एंड दैट पर्सन वाज लाइक, तेरा दिमाग खराब है, ये बेसिक होता है, इसमें इतना सब कुछ है. तो लेकिन मेरे जोन में ऑनेस्टली जब हमारा लॉन्च हो रहा था, तो लॉन्च के टाइम पे ना हमें ईमेल लिखने थे. तो हमने कहा एक बार फीचर्स को दोबारा से स्टडी करते हैं. एंड मैं और मेरी एक टीममेट थी तानिया, हम साथ में बैठे हुए थे, एंड हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अब इसमें तो इतना कुछ है यार. मतलब यू योरसेल्फ फॉरगेट, आपके दिमाग में सिर्फ वो अगली चीज है जो नहीं है. करेक्ट. जो है वो उसके बारे में आप, और फिर देन यू आर योरसेल्फ रिकॉल कि अभी इतना कुछ तो है भाई, चलो ठीक है, तो ताबड़तोड़ मचाते हैं अब जाके दोबारा से. तो यस, वो कॉम्प्लेसेंसी आ सकता है बिकॉज यू कैन फॉरगेट अबाउट दैट एक्साइटमेंट. मे बी यू कैन फॉरगेट अबाउट योर ऑल द थिंग्स वेयर यू हैव ऑलरेडी रीच्ड. तो एंड यू आर ऑलवेज एस्पायरिंग फॉर दैट न्यू थिंग. तो वो कॉम्प्लेसेंसी आने का रीजन क्या है, दैट वी नीड टू फिगर आउट. एंड देन व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि यार कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कीप डूइंग. So, I mean, then your overall process, your daily to-do list, things like that works. So like you said, and at the same time, there is also one more perspective. Right. So sorry. No, please. There is also one more perspective, जो मैंने अभी एक लीला हॉर्मोजी का मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था. And she said कि whenever I am having a bad day, I realize this, that it is the price that I am paying for all the amazing days that I get to have in my life. I love that. क्योंकि जो मेरे अमेजिंग डेज हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में एक्सेप्शनल है. तो वो अमेजिंग डेज पे जाने के लिए मेरे को प्राइस पे करना पड़ेगा. Makes sense. तो and I think, see, the
again, coming back to context, like you said, your amazing days are exceptional for everybody else. I'm sure your bad days are also at this point are amazing for a lot of people. अभी तो बैड डेज ऐसा आता है कि शॉक, भाई ये सर्वर चलना बंद हो गया, अच्छा Right. सर्वर चलना बंद हो गया, क्या करें, फिर रात को डेवलपर्स को कॉल कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक देन अभी तो बैड डेज लाइक मोर इनटू शॉक वाले जोन में लेके चले जाते हैं. Right. No, actually, so, for the listeners of this show, to give them some, help them out with where they are right now. Like you said, now it's become a process. Now it's become a process where you've accepted the process that this is going to be the way. अच्छा भी होगा खराब भी होगा पता है. But let's see if we can roll back to our time where, let's say, first time FlexiFunnels, or before that. I think by FlexiFunnels also you were quite, sorted out with a lot of things. Yeah. Let's go back to a point before where you tried something. In fact, I read in your story that you had hosted an event with celebrities. Back then, when you didn't have money, you took a very big risk. Correct. And you got celebrities in. Tell me about that, and then also tell me something that went wrong and how you dealt with that, because I feel there is the first time you would have experienced that emotion of shit, I think I've messed up my whole life. Yeah. That feeling comes in, where you're taking that big risk and you feel like shit, I think I've just messed up my whole life. And see, now when you look at it feels like a joke, but back then I'm sure you felt it that this is a point of no return. Iske baad I'm just done. So Correct. I want to know about that. Yeah, so it was back in 2015. Okay. उससे पहले हमने इवेंट्स करे हुए थे, काफी इवेंट हमने देहरादून में कर लिए थे. एंड What event was this? सो ये डिफरेंट इवेंट था. जो इससे पहले हम इवेंट करते थे वो डिफरेंट था. इससे पहले जो हम इवेंट करते थे वो था हम लोग कॉलेज के और स्कूल के स्टूडेंट्स को बुलाते थे और उनको मल्टीपल टास्क देते थे. एक 13-14 राउंड का एक पूरा इवेंट होता था हमारा, जिसे हम कहते थे 10 सर्वाइवर. तो वो जो 13-14 राउंड सर्वाइव करके जो जीतेगा उसको हम 10 सर्वाइवर का टैग देंगे. Okay. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग. उसके अंदर मल्टीपल चीजें, डिबेट भी होता था, फिजिकल टास्क भी होते थे, ग्रुप टास्क भी होते थे. Was it inspired by roadies by any chance? काइंड ऑफ यस. लेकिन वो स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. Right. एंड उसमें हम लोग जितने लोकल बिजनेसेस थे उनसे हम स्पॉन्सरशिप लेके उनके स्टॉल लगाए थे. तो वो एक रेवेन्यू मॉडल हमने वहां पे फिगर आउट करा था. तो उसके बाद फिर देहरादून में एक अच्छा मॉल खुला था. हमने कहा यहाँ पे एक बड़ा इवेंट करते हैं एंड उसमें सेलिब्रिटीज को भी बुलाएंगे, सबको कराएंगे, क्योंकि हमारा यूएसपी जो हमारा कोर बिजनेस मॉडल था. जो भी चीज हम करते थे ना, जैसे ये यूएसपी ये वाला इवेंट करते थे सर्वाइवर, उससे हमें एक मास विजिबिलिटी मिलती थी. जिसकी वजह से जो हमारा कोर बिजनेस मॉडल था कूपन्स वाला, वो सारे लोगों के सामने आता था. सो दैट वे दैट इवेंट बिकेम फ्री फॉर अस, क्योंकि हमें इतना मैसिव विजिबिलिटी मिल गया. तो हमने कहा अब इस मॉल में जाके एक बड़ा इवेंट करते हैं, सेलिब्रिटीज को भी बुलाएंगे और वहां पे हमारे काउंटर्स लगे होंगे जिसमें कि हमारा ये यूएसपी कूपन कार्ड वगैरह प्रमोट कर रहा होगा. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका रेकरिंग आएगा, सारी चीजें आएंगी. तो दैट वे इट विल बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल इवेंट फॉर अस. राइट. तो इवेंट का प्लान करा और प्लान भी ऐसा करा कि 9 दिन का इवेंट प्लान करा. 9 days. 9 days. Wow. Okay. एंड 9 days यू आर पेइंग टू द मॉल. Right. एंड उसमें हमने पता नहीं क्या क्या चीज सोची कि इसमें डांस कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे, पुलिस वालों को भी बुलाएंगे, उनको भी सेलिब्रेट करेंगे. एंड जो वाटर वाले होता है ना, फायर डिपार्टमेंट, उनको बुलाएंगे, उनको भी एज अ हीरो सेलिब्रेट करेंगे. हमने कहा सब करते हैं. एंड सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस भी करेंगे. सारी चीजें करी. लेकिन सारी चीजें करने के लिए पैसे उठाए अलग अलग जगहों से. करेक्ट. एंड जहां से पैसे आने थे वहां से पैसे आए नहीं. Oh shit. Okay. या फिर आप जितना ओवर एस्टिमेट कर लेते हो कि इतना पैसा आ जाएगा, क्योंकि आप इतना बड़ा कर रहे हो तो पैसा तो आना चाहिए ना. हाँ. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट यू सी एज वैल्यू, मे बी इट इज नॉट वैल्यू फॉर द अदर पर्सन. Absolutely. तो सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया. तो अब लेकिन हमारे सारे कमिटमेंट हो चुके हैं, अब वो गैप फुलफिल करने के लिए हमने पैसा फिर लोगों से लिया. तो फिर जब इवेंट पूरा खत्म हुआ और हमने सारे जितने हम टास्क कराए थे इवेंट के अंदर, जैसे डांस कंपटीशन करा रहे हैं, सब में हमने मनी प्राइस भी कमिट करा हुआ है 5-5 हजार रुपए का. तो पूरे दिन में 10-10 टास्क हो रहे हैं, 9-9 टास्क हो रहे हैं, हर एक में मनी प्राइस भी दे रहे हैं कि मतलब कुछ खतरनाक करेंगे, ऐसा जो आज तक देहरादून में तो एटलीस्ट नहीं हुआ. करा, लेकिन वो सब करके फिर पूरा 10 लाख रुपए का लॉस हुआ एट द एंड ऑफ द डे. Oh shit. एंड नाउ व्हेन दैट लॉस हैपेंड, तो उसके बाद तो फिर हर तरीके की चीजें हुई. पहली चीज, आपका मनी लेवल पे बिजनेस तो भूल जाओ. वो तो अब नहीं बचा. हमें 4 साल से एक चीज कर रहे हैं जिसमें पैसा नहीं आ रहा है. Right. तो यही प्लान था कि कुछ खतरनाक करेंगे, पूरे देहरादून को विजिबिलिटी होएगा, तो उसके बाद वी विल हैव अ अपवर्ड्स कर्व. लेकिन वो फिर बिल्कुल जीरो पे आ गया. एक वो वाली चीज होती है ना, अनटिल एंड अनलेस यू हैव द बैक अगेंस्ट द वॉल, जिसे बोलते हैं कि अब सब खत्म हो गया, नाउ यू आर फोर्स्ड. तो आई वाज फोर्स्ड टू गो इनटू ऑनलाइन बिजनेस. Got it. क्योंकि उससे पहले ये था कि वो सर्वाइव हो रहा था बिजनेस. सर्वाइव भी ऐसे हो रहा था क्योंकि घर में रहते थे तो एक्सपेंसेस नहीं थे.
तो इससे सर्वाइव कर लेते थे। right. तो लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि अब तो वो नहीं चल सकता। तो यस, मॉनेटरी लेवल पे डिस्कशन हुए, पार्टनर्स लेवल पे डिस्कशन हुए। हमारे उस बिजनेस में एक बहुत बड़ी गलती थी, उसमें 7 बिजनेस पार्टनर्स थे। Oh my God, okay. तो 7 बिजनेस पार्टनर्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि वो 7 बिजनेस पार्टनर कैसे आए होंगे, कि अपन दोस्त हैं, आजा बिजनेस पार्टनर। Right. तो वो वाले बिजनेस पार्टनर थे। अब हर एक का विजन लेवल अलग है, Right. हर एक का जो मॉनेटरी नीड है वो अलग है, हर एक का लेट्स सपोज द हंगर वो अलग है, हर एक का वर्क एथिक्स अलग है, लेकिन सबका इक्वल डिसीजन मेकिंग है, सबका इक्वल शेयरिंग है। Right. वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। तो वहां पे अब ऑफ कोर्स थिंक अबाउट इट इन अ वे कि मैं एंड राहुल भी ऑफ कोर्स वी वर द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट? तो वो भी फिर हम पे आएगा कि तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है, Right. यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? एंड फिर वो चीजें घर तक भी पहुंची, एक के घर से दूसरे के घर पे भी आई। मतलब उनके पेरेंट्स आर लाइक सिटिंग इनसाइड आवर हाउस Got it. कि तुमने हमारे बच्चों को गलत डायरेक्शन में भेज दिया, Yeah. एंड वो आपके फैमिली में वो सारे डिस्कशंस हो रहे हैं। Yeah, I recollect this because one of my friend's mom came to my house. Okay. Please, yes. तो क्योंकि सी वो तो हर जगह ही होता है ना कि सामने वाला ही गलत है, Right. मेरे घर में तो सब सही है, राइट? या इसी ने बिगाड़ा। तो बट वी वर टुगेदर, राइट? वी वर डूइंग इट टुगेदर अल्टीमेटली। सो ये सारी चीजें होने के बाद सब फिर द ओनली वे आउट फॉर मी वाज, क्योंकि टू प्रमोट माय कूपन्स वाला बिजनेस आई वाज लर्निंग फेसबुक एड्स साइमल्टेनियसली। क्योंकि गैरी वेनरचक के वीडियोस देखते थे, वो कहता था कि फेसबुक डार्क पोस्ट एड से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आपने जो देखा आपने वो ट्राई करना चालू करा, एंड बिकॉज आई हैड कनेक्शन विद अ लॉट ऑफ लोकल बिजनेसेस, तो अब कुछ बचा नहीं है करने के लिए, तो मैंने कहा मैं आपके लिए फेसबुक एड चला दूंगा, क्योंकि दैट वाज वन सिंगल स्किल सेट दैट आई वाज लर्निंग पैरेलली, नॉट टू बी अ फेसबुक एडवर्टाइजर बट टू प्रमोट माय कूपन्स वाला बिजनेस। Right. लेकिन दैट बिकेम माय वे आउट, एंड वहां से फिर वो पूरा रास्ता आगे जाके कनेक्ट होता गया। Wow. तो यस, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आप मॉनेटरी डाउन हो, आप मॉरली थोड़ा सा डाउन हो, How did you आप cope up team with that? level पे- How did that hit you? मेरे लिए वो कोप अप करना थोड़ा सा इजी था बिकॉज ऑफ भैया, राहुल भैया, Right. क्योंकि ही टुक अ लॉट ऑफ हिट ऑफ दैट, क्योंकि बीइंग अ एल्डर ब्रदर, Right. तो फिर वही हो जाता है ना कि ये बड़ा भाई है, तो वो थोड़ा सा वो वाली चीज हो गया था। एंड सिंस आई वाज आल्सो लर्निंग दिस पैरेलल स्किल सेट, तो उनका पाथ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। वो इस फेज के बाद थोड़े से डिप्रेशन वाले, हल्का सा उस वाले जोन में चले गए थे। मैं इस वाले जोन में चला गया था कि मेरे को अब ये करना है ऑनलाइन वाला। Right. तो मैं वहां से शिफ्ट होकर दिल्ली चला गया, मैं गौरव साथ में रहना हमने चालू कर दिया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद द क्लाइंट्स। ये 50,000 वाला क्लाइंट, फिर एक और 1 लाख रुपीस का क्लाइंट मिला। तो माय हैप्पी डेज स्टार्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दोस हैप्पी डेज हमने उस लोन को भी रीपे करना चालू करा। Okay, that's एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग अ फ्यू मोर थिंग्स, एंड एफिलिएट मार्केटिंग करना चालू करा, कुछ चीजें करना चालू करा, वहां से इनकम आया, एंड अपना जो भी लोन वगैरह चुकता करना था वो सब करा। तो दिस वाज माय जर्नी। भाई का पाथ अलग था, तो वो आप भाई से डिस्कस कर I'll सकते get हैं। Rahul Bhai. In fact, the other day when I was talking to Rahul Bhai, one thing that he said hit me on another level. He said, with this complacency part itself that we were discussing before, I asked him the same question that I asked you. He said, I've never taken anything lightly because success came quite late in my life. Correct. And the kind of value that I have for success, Correct. I'm never going to let go of it. That 100%, really moved me. 100%. मैं so I wanted to come to that only कि Right. इतना सब कुछ होने के बाद ना अब वो कॉम्प्लेसेंसी आने का चांस नहीं बचा है, Makes sense, क्योंकि आपको makes पता है कि भाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन Right. नहीं है, और जिस दिन रुक गए वहां पे आप खत्म हो गए। Right, that makes sense. Now let's we discuss the first event. Now let's go to the recent event, one of the largest events in India that you guys did, the Growth Summit. Tell me everybody knows the kind of success, the kind of grandeur. We have Neil Patel, we have Anik Singhal, all of these, the most famous personalities in the world, they were there here. I want to understand, let's primarily talk about the things that went wrong and how you dealt with that, because the whole objective of the Rise of the Superhuman is to show people that even on the larger scale, when you do things, it's not as rosy as it looks on the outside. On the front end, finally, it is a great event. Everything is successful. It was grand. It was beautiful. It was nicely done. But the kind of anxiety that comes behind something like this, 6,500 people. नहीं 4,500 4,500 people. ठीक है, हाँ. For 4,500 people, again, हाँ मतलब it's still big but right number। 4,500 people, correct. 4,500 people. The kind of anxiety that must be kicking, I can't even imagine. So I would like to hear. भाई okay, so it came from two things जो Right. सबसे we can continue this story, लेकिन top of my mind two things. Number Right. one,
इज कि हमने सबसे पहले जाके जो सबसे पहली चीज करी वो वेन्यू बुक करा, कि जो बड़ा स्टेडियम होगा हमने ढूंढा ही, स्टार्ट ही वहीं से करी, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट इवेंट जो करा रहे होते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, व्हाट दे डू इज कि वो पहले अपना टिकट बेचते रहते हैं, राइट, एंड जब इवेंट बिल्कुल आने वाला होता है 10 दिन पहले वो बता देते हैं कि किस सिटी में होना है, लेकिन वेन्यू नहीं बताते, क्योंकि हर एक का माइंडसेट ये होता है जितने बिक जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वेन्यू बुक कर लेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, So, and then they tell the venue to the attendees. हाँ. What we did was the very first thing was without even selling one single ticket was कि पहले venue book कर लिया। वाओ, उसके बाद फिर टिकट अब तो बुक कर दिया, अब तो भरना ही है, हाँ, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, है ना। तो पहले एंड गोल तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर हाउ फिगर आउट करते रहेंगे, राइट। लेकिन ये एक बहुत ही गलत चीज हो सकती है एक सुनने वाले के पर्सपेक्टिव से, कि भाई मैं पहले जाके सब कुछ करके आ जाऊं, क्योंकि उसके पीछे कैलकुलेशंस भी थी। Like this is the disclaimer, don't try this at home, WWE में दिखाते हैं ना। हाँ, क्योंकि उसके पीछे कैलकुलेशंस भी थी। कैलकुलेशन ऐसी थी कि मेरे को पता है मेरा सोशल मीडिया फॉलोइंग कितना है, राइट, मेरे को पता है मेरा ईमेल लिस्ट का साइज कितना है, मेरे को पता है मेरे बायर्स इतने हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, और मेरे को पता है कि लेट्स सपोज मेरा सोशल फेसबुक ग्रुप वगैरह का साइज इतना है, टेलीग्राम कम्युनिटी इतनी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी इतनी है, एंड सिमिलरली यही चीजें, यही सारे एसेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राहुल भैया का ये सारी चीजें हैं, ईमेल लिस्ट से लेके वही जो सारी चीजें मैंने अभी बोली। तो हमें ये पता था कि जो द नंबर दैट वी आर ट्राइंग टू फिल इज नॉट इवन 1% ऑफ द पीपल हु आर डायरेक्टली फॉलोइंग अस। वाओ, ओके। तो दैट वे दिस कन्विक्शन केम कि इतना तो बेच ही देंगे, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये भी लगता है कि अगर मैं 500 लोगों को जानता हूं तो वो 500 लोग खरीद लेंगे, बट द वे वी आर डूइंग द कैलकुलेशन इज अगर मैं 100 लोगों को जानता हूं तो शायद एक खरीद लेगा। 1% buy, that's good, yes. तो वो 1% लेवल पे वी डिड द कैलकुलेशन कि हाँ इतना तो बेच ही देंगे। टारगेट वाज 5000 एंड वी वर नॉट एबल टू हिट दैट। So did that hit you on another level? Because see, you did the math and you're right. So like you said, 100 people, 1% should buy, right? हाँ. And now somewhere, see, you sold 4,500 tickets and I'm sure a lot of tickets came in the last minute. Did that happen? वो तो होता ही है, हमेशा होता है। But when it didn't happen, you were very excited. You went and booked the venue. You went and did this. You also, you're taking a bold move. It's a great story also, saying we booked the venue first and we made this happen. But that kick that came in after booking the venue, I want to know what happened to that. The real kick came after we saw people in the venue. Right. कि आ गए। हाँ। बेचना एक अलग चीज थी, क्योंकि बेचने के लिए आपने सब चीजें कर दी। Right. बेचने के लिए आपने ओके, सो हाफ वे थ्रू द हमने ये पूरा सेलिंग 70 डेज में करा था। Okay. तो हाफ वे थ्रू आउट द मार्क, अराउंड 35 डेज के पीरियड पे वी वर एट समवेयर अराउंड लेट्स से लेस देन 2000 टिकट्स। Okay. तो अब आप और आपका ओरिजिनल टारगेट इज 5000, राइट। तो अब इस समय अपने टारगेट से काफी दूर हो, राइट, एंड दिन बचे 30, एंड द मेजर नंबर ऑफ सेल्स आइडियली आई सपोज टू कम जब आप अर्ली बर्ड ऑफर निकाल रहे हो। करेक्ट। और जो आपके लॉयल फॉलोअर्स हैं, राइट, क्योंकि वो लॉयल फॉलोअर सबसे जल्दी बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट डे वी डिड द वेबिनार, वी सोल्ड अराउंड 600 टिकट्स ऑन द सेम वेबिनार। लेकिन उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ, तो अब आपको दिख रहा है कि अगले 30 दिन में आपने टोटल मिला के 1700-1800 टिकट पे पहुंचे हो, और अब वो टिकट के नंबर ऑफ सेल्स थोड़ा सा कम हो रहा है। तो वहां पे एक अच्छा आइडिया हमें, आई वुड गिव द क्रेडिट टू गोपाल। तो ही सेड कि अभी आपका फ्लेक्सीबल का लॉन्च हुआ था 3-4 महीने पहले, उसका एक अच्छा बज़ है मार्केट में। तो अगर आप सारे टिकट ओनर्स को एक उसका लेट्स सपोज एक फ्री एक्सेस दे दोगे 2 से 3 महीने का, तो दैट विल बिकम अ गुड सेलिंग पॉइंट। तो दैट आइडिया वी इम्प्लीमेंटेड, दैट वर्क लाइक क्रेजी। अगेन जैसे बोलते हैं ना, हर एक बड़ी चीज बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से बन के मिलती है। अब वो छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, यू नो लाइक दिस, आधे घंटे की कॉन्वर्सेशन होगी, लेकिन उसकी वजह से एक अलग स्पार्क मिल गया आपकी टिकट सेल्स को। तो एंड देन वी व्हाट वी आल्सो डिड वाज, मेरे बहुत सारे जो कोर्सेज थे फेसबुक एड्स के, फनल्स के, कॉपीराइटिंग के, उनको भी हमने एज अ बोनस डाल दिया। तो ऑन द डे ऑफ द इवेंट मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है कि बहुत सारे लोगों ने टिकट बाय करा है क्योंकि उन्हें फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं और उन्हें फ्री फ्लेक्सिबल मिल रहा है 3 महीने के लिए। तो आई दे लिटरली इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द इवेंट, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी इतना नो ब्रेनर बना दिया है कि वो सिर्फ उस बोनसेस की वजह से बाय कर रहे हैं, वो सिर्फ फ्लेक्सिबल की वजह से बाय कर रहे हैं। तो वो इवेंट में आने में इंटरेस्टेड होंगे भी कि नहीं होंगे। तो जब वहां पे आके हमने देखा कि हाँ सही में आ गए, फिर वो टेंशन हट गई थी, क्योंकि लिटरली लास्ट नाइट तक वी वर लाइक कि भाई पता नहीं है कितने आएंगे। करेक्ट, क्योंकि आपका सिर्फ यूएसपी सिर्फ टिकट नहीं था, a lot of other things were there, right? तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन था इवेंट से पहले तक। फिर जब हो गया तब तो फिर अपन वो हो गए थे। लेकिन हाँ, ये पुरानी कहानी है, right? अब इसके बाद इवेंट के अंदर जो चीजें गलत हो रही होती है वो तो आपको पता है। A lot of things always go wrong inside the event.
इट्स लाइक कि जो एजेंडा है वो किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि आपने एजेंडा अगर किसी को बता दिया, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव सेलिब्रिटीज कमिंग टू द इवेंट, करेक्ट, जिनका कि ऐसा है कि मैं लेट तो आ सकता हूँ लेकिन मेरा जो जाने का टाइमिंग है वो वही रहेगा। राइट, तो अब आप उसमें क्या करोगे? तो अब आपको उनको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा ना। एंड लेट आने के लिए तो एवरी रीजन है एक्सेप्टेड। बंदा ट्रैफिक में ही फंस सकता है, बंदा का मूड भी नहीं है, बंदे को सिक्योरिटी ने लेट कर दिया, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड आपको बाकी स्पीकर्स को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, हु आर आल्सो वेरी गुड पीपल। राइट। तो सेकंड डे पे हमारे तकरीबन शायद 14 स्पीकर्स थे, जिसमें से कि 3 या 4 ये सेलिब्रिटी वाले थे। सेकंड डे पे ही थे। पहला और थर्ड डे इजी था, लेकिन सेकंड डे पे ये वाली कहानी थी। और उसमें हर एक का वही आने के लिए अब मैं इतना लेट हो गया हूँ। अब वो लंच टाइमिंग को हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक हमारे स्पीकर थे, प्रशीक नाम था उनका, उनका लंच के बाद होना था, एंड मंदिरा बेदी का लंच से पहले होना था। अब नाउ द टाइम इन विच मंदिरा बेदी वाज सपोज्ड टू कम, वो उसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो फिर हमने प्रशीक को बोला भाई तू अभी सेशन कर, तो वो लंच से पहले उसे एडजस्ट करा। अब ये सारी चीजें जो वहां पे 4,500 लोग हैं, ये उनको पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट, दे वोंट इवन रियलाइज इट, क्योंकि the show that is going on, it has to look like it's a perfect show. Yes. Okay, so think of it in this way कि इरफान पठान का भी नेक्स्ट अपीयरेंस है, लेकिन वो 10 मिनट लेट है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं स्टेज पे जाके लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूं। पीपल वुड फील लाइक कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये प्लान्ड है, लेकिन हमें पता है कि वो रैंडम हम लोग फिल इन कर रहे हैं कि हाँ भाई कैसा लग रहा है आपको इवेंट। तो वो कंटेंट का पार्ट कभी भी नहीं था, लेकिन क्योंकि आपको फिल इन करना पड़ा है। अभी की बात है, अभी जब दीपक का इवेंट था, दीपक के इवेंट में आपने देखा होगा जो उसका वो था एजेंडा। उसके इवेंट में देयर वाज अ पैनल, देयर वाज लंच, देयर वाज अनदर पैनल, देन मेरा फ्लेक्सिबल उसका डेमो था। करेक्ट। तो उसके इवेंट में कुछ चीजें लेट हुई थी, हमेशा हर इवेंट में होती हैं, तो उसे लंच पहले करना पड़ा। तो मैंने कहा लंच पहले हो गया, तो पैनल लंच पैनल सौरभ। तो इन माई माइंड इट वॉज लंच पैनल पैनल सौरभ, क्योंकि सीक्वेंस तो वही रहेगा। और मैं पीपीटी पे काम कर रहा हूँ आराम से। और जब पहला पैनल ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है, वहां से मेरे को कॉल आता है कि आपका सेशन नेक्स्ट है। मैंने कहा एजेंडा के अकॉर्डिंग तो पैनल था। फिर मैंने अरमान को कॉल करा, मैंने कहा भाई ये पीपीटी मैंने हाफ कुक जैसे भी रेडी करा है, और उसने मेरे को बोला कि इस स्क्रीन पे ना हमारी पीपीटी एक पहले की बनी हुई है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो 16:9 है रेशो, लेकिन उसने बोला कि इन दिस प्रोजेक्ट ओनली 4:3 इज गोना वर्क। तो अरमान को मैं मेल कर रहा हूँ कि भाई इसे ठीक कर, तेरे पे 5 मिनट है। और अगर आपने देखा होगा, अगर आप फ्लेक्सिबल्स के डेमो में थे, मैं डेमो में जाके पहले 5-7 मिनट सिर्फ लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, क्योंकि पीपीटी नहीं थी। No, I know this. I can relate to this so much because I think in the first reset, and we were waiting for the PPT की PPT आएगी तब मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं वहां पे ऐसा फील नहीं करवा सकता ना कि कुछ नहीं है आपके पास, तो मैं लोगों से बातें कर रहा हूँ वहां पे। So I think in the first reset that we did, we again last minute था, we invited a lot of people, everybody came in, and PPT is not ready, and 3 days का event है. I'm quite literally speaking, and she's typing that on the other, whatever looks so cool on the front, she's typing it as I speak. And then she's presenting it. So वो पूरा event का PPT was made at the event, and it's something that, so I don't think a single member, I think till now that they watch the video, they'll know it. Right. But otherwise nobody is ever going to know this kind of, the confusion, the chaos, the anxiety, the pressure, the stress that goes into something like confidence. this. क्योंकि आपको पता है आप खींच लोगे। क्योंकि आपने इतनी बार कर लिया है। हम FGS में भी ऐसे ही था, मेरा नेक्स्ट सेशन है पीछे PPT बन रही है, स्टेज के पीछे बैठ के, वो हर सेशन ऐसे ही था, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट सेशन लेट्स सपोज फेसबुक आर्ट्स के ऊपर है यार, मैं उसे 10 साल से कर रहा हूँ। आई हैव बीन, यू नो, आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक इवन विद माय आईज क्लोज्ड। तो वो पीपीटी में ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बेटर, आपके पॉइंटर्स मिस नहीं होते। तो नाउ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप कर लोगे। तो again that, you know, that consistency also helps you over there. Yeah, of course. So we were, I think before the recording started, we were having this conversation on how conviction impacts sales. Everybody is out there to, I was also into sales coaching, and Rahul Bhai has also been, you know, coaching a lot of people in sales, right? So one thing that I've realized over time is that more than persuasion skills, the skills of sales, the conviction that you have on the product, or the conviction that you have on the result of the product will sell so much 100%. beyond any persuasion skills. Correct. So Alex Hormozi has this thought where he says it's a great, if you have a hungry market, you don't need any persuasion skills. Correct. Because people want it. Correct. Then comes a normal market, and if you have a great offer, you don't need any persuasion skills.
And the last part, he says, if you don't have a hungry offer, you don't have a great market, then you need great persuasion skills. I feel if you don't have a hungry market, if you don't have a great offer, what you need is a very strong conviction before persuasion skills. That Correct. I think that's where people miss out on, where if they're selling a product, or I see this happening with a lot of coaches, when they sell whatever they're selling, it doesn't show on their face that they're convinced with what they're selling. With their own product. Right. Exactly. Right. True. That's my thought, and I just wanted to hear from you. What is your this one on how does somebody develop this conviction? यार this conviction, I will tell you कि अभी हुआ क्या है. Right. I will tell you the real story. Okay. FlexiFunds का लॉन्च हमने लास्ट ईयर करा. लास्ट ईयर करने के बाद we had certain sales team members जो कि who were selling that particular product. अब आपका एक फेज चल रहा है जिसमें प्रोडक्ट बना रहे हो, Right. फिर आप उसकी लॉन्च की तैयारी कर रहे हो. राइट. तो आपने अपनी टीम को बोला, जो प्रोडक्ट टीम है, कि सेल्स टीम को गाइड कर दो कि प्रोडक्ट क्या है. सेल्स टीम को बोला कि उनको गाइड कर दो कि प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है. राइट. लेकिन एक बीच का एक और फेज आता है जिसमें आप फाउंडर हो, जिसमें आपको वो हर एक फीचर का बेनिफिट पता होता है. प्रोडक्ट टीम ने फीचर बताए, Right. इसने एक ये चीज बताया, लेकिन क्या करने से क्या बेनिफिट आ रहा है वो चीज आपको पता है. राइट. लेकिन आप ड्यूरिंग दैट मिक्स, क्योंकि आपके माइंड में ये है कि इसने ये गाइड कर दिया, इसने ये गाइड कर दिया, आप सॉर्टेड हो. लॉन्च हुआ, लॉन्च खत्म करा, 1 महीने के बाद हमने इवेंट की तैयारी शुरू कर दी. Right. तो लॉन्च को रैप अप करने में 1 महीना तो लगेगा, क्योंकि आप एफिलिएट्स को पे आउट कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो, मतलब जो भी है सपोर्ट सिस्टम, एंड इतने सारे नए कस्टमर आए, उनको सपोर्ट दे रहे हो, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. फिर 1 महीने बाद इवेंट की तैयारी शुरू हो गई. इवेंट को खत्म करा, उसके बाद हमारा 1-to-1 कुछ इवेंट्स वगैरह हुए थे. तो अब जाके अप्रैल ऑनवर्ड्स आफ्टर दैट इवेंट, एक मेरी टीम के जो बहुत सीनियर सेल्स पर्सन थे, जो कि टीम को मैनेज भी करते थे, उन्होंने क्विट करा. तो अभी तक उससे पहले मेरे दिमाग में यही था, द वे इट हैज वर्कड सो फार इन द लास्ट 3 years, ही वाज देयर विद अस फॉर द लास्ट 3 years, कि he used to manage the sales team, and I used to manage all the other departments. I was like fully, carefree about that sales department, and he did an amazing job. लेकिन he never came from a technical background. Right. He came from a network marketing background, so that's why he was good into selling. He was good into selling in terms of storytelling, ये वो, and उसका मेरे को लेके और प्रोडक्ट को लेके कन्विक्शन बहुत अच्छा था. Right. तो he was always good into selling. लेकिन now I was forced to get into the sales department because the sales department did not have a leader, क्योंकि लीडर चला गया. राइट. एंड अब मेरे पे टाइम भी था, क्योंकि लॉन्च भी हो गया, सारी चीजें हो गई, सपोर्ट सिस्टम भी अच्छे से सेटल्ड है, तो अब मेरे पे टाइम था. मैंने कहा ठीक है, अब सेल्स डिपार्टमेंट में घुसते हैं. मैंने घुस के रोल प्लेस करवाए. मेरे को रियलाइज हुआ यार, शिट, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब द वे यू विल टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट वर्सेस जो आपके सेल्स पीपल आपको बातें कर रहे हैं, एंड इन सम केसेस दे आर नॉट इवन फुल्ली एजुकेटेड. द वे इन विच यू आर एजुकेटेड वो उस लेवल पे एजुकेटेड नहीं है. करेक्ट. अगले 1 महीने रोज सुबह 9 बजे उठ के मैंने उनके लिए सेल्स की ट्रेनिंग करी, जिसमें से कि आई बिलीव 20+ सेशंस वर ऑल अबाउट द प्रोडक्ट. ओके. एंड मेरे सेल्स टीम के लोग जो कि 1 साल से उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनके रिएक्शन ऐसे हैं, सर इसमें ये भी होता है. एंड दे वर लाइक सुपर सरप्राइज्ड कि ये इतना पावरफुल हो सकता है. इस एक छोटी चीज से, हम तो इसे एक लाइन समझते थे, लेकिन एक छोटी सी लाइन की वजह से एक बंदे का इतना बिजनेस बढ़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे फ्लेक्सी के अंदर एक हमने फीचर डाला है विच इज ऑटोमेटिक कार्ट अबैंडन, कि अगर कोई आपका कार्ट अबैंडन करके जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा, जिसकी वजह से दे कैन मेक द परचेज अगेन, वो आपके नाम के और आपके प्रोडक्ट लिंक के साथ जाएगा. राइट. सुनने में एक फीचर है, लेकिन जो मेरा पुराना प्रोडक्ट था जिसमें मैंने $1 million प्लस की सेल्स करी हुई है, मैंने उसका कार्ड अबैंडन सीक्वेंस के स्टैट्स दिखाए, एंड मोर देन $15,000, 10 लाख रुपीज वी हैव जनरेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्ड अबैंडन ईमेल. राइट. जो कि पहले आपको 2-3 अलग टूल्स मिला के सेटअप करना पड़ता था, वो फ्लेक्सी में हमने एज अ फीचर दे दिया. Right. जिसके लिए किसी को कुछ करना भी नहीं होता है, दे जस्ट नीड टू यूज फ्लेक्सी, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली हो रहा है. राइट. तो देन आई शोड देम द वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल फीचर. अब वो सारे एक्सपीरियंसेस तो कोई प्रोडक्ट टीम या कोई सेल्स टीम नहीं बता सकती ना, वो मैंने बताना शुरू करा. राइट. तो वहां से मेरी सेल्स टीम का जो कन्विक्शन लेवल है वो इतना मैसिव लेवल पे बढ़ा. उसके वो ट्रेनिंग हमारी चल रही है, उसके बीच में हमारे जो सेल्स का नंबर था वो डबल हो गया. Oh, wow. एंड ग्रेजुअली वो जो सेल्स का नंबर है, इट हैज कंसिस्टेंटली बीन देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब तक वो सेल्स ट्रेनिंग खत्म हुई, मोर देन द सेल्स ट्रेनिंग, इट वाज द प्रोडक्ट ट्रेनिंग. जब तक वो खत्म हुई, तब तक हमारा सेल्स का नंबर लाइक बहुत मैसिवली बढ़ चुका था. राइट. सो अगेन इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आपका या जो भी पर्सन उसे सेल कर रहा है उसका कन्विक्शन कितना ज्यादा है. एंड इसीलिए
you know the founder of the product is always a very good salesperson, क्योंकि आपको उसका why पता है. Correct. और आपको उसकी एक एक चीज इन एंड आउट पता है. आप तो सामने वाले बंदे को इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो भाई तू कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है, तेरे को चाहिए ये. Right. लेकिन वो कॉन्फिडेंस अभी उस सेल्स पर्सन के पास नहीं है. Right. तो आप उस सेल्स पर्सन को बस वो कॉन्फिडेंस दे दो without any persuasion skills and they will be able to sell the product. Makes sense. I think you took this question to the next level where you also answered this question on, okay, I as a business owner, I can develop the conviction. What about my sales team? So I think you need to transfer that conviction that you have, not based on just motivation, but Right. based on actual facts, unlike how you said the cart abandonment email. Now that they know that, okay, this has the potential to save them so much money. Correct. वो next time जाके बोलेगा, sir, just with this tool, I feel whatever you are paying for this tool, you will recover just with this one feature. Forget Exactly. everything else. Exactly. Right? Exactly. That conviction suddenly comes in and he's like, now when he's talking about the price, it's a no-brainer for him in his mind. Exactly. So I think when you immediately, it becomes a no-brainer price in your mind, it starts selling. Right. Exactly. क्योंकि वो आपकी बातों में दिख जाएगा, वो आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाएगा. Right. अदरवाइज आप अगर आप खुद उसको लेके सोल्ड नहीं हो कि यार अगर आपके दिमाग में खुद वो अमाउंट बढ़ा है तो आप उस कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाओगे. अगेन वो नो ब्रेनर वाला जो फैक्टर है कि यार ये आपके लिए प्रोडक्ट सही में अच्छा है और इसका प्राइस कुछ भी नहीं है वर्सेस द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग. Right. दैट्स हाउ इट इज. यस. No, in fact, everything that you've been doing, you've done and been doing is on a very large vision, including Flexi Funnels. Because when I was, thinking about this podcast and thinking about you being here, one thought that this is a question that I have directly to you. I had this question on, you started Flexi Funnels. And I want to understand what was the thought process behind it, considering there are so many other players in the market who have been established for years, point one. And the second thing, if I look at high level at this point, it's pretty much become like a network marketing on its own. I pretty much see high level to be a network marketing in the SaaS space. Right. Now, considering these two factors, what was the confidence or from where did this thought, I don't know, I just want to hear how this whole Flexi Funnel vision came in and where was the confidence that came in saying, you know what, we can still outbeat everybody else. Okay. So I guess Flexi Funnels will not be a true story to justify that answer. The true story to justify this answer would be Timeline Nomination. Okay. जो इससे पहले मेरा कोर्स था. Okay. Which started as a Facebook ads का कोर्स. Gradually it became a Facebook ads and funnels का कोर्स. And gradually it became everything. Okay. Copywriting, everything. सब कुछ उसमें हमने डाल दिया क्योंकि of course over a period of time you stack value, right? उस समय पे I was seeing everybody else in the market, good people, जो कि अपने कोर्सेज सेल करते थे, इंक्लूडिंग फेसबुक एड्स कोर्सेज, 2000 रुपीज, 3000 रुपीज, 5000 रुपीज, मैक्स टू मैक्स 5000 रुपीज. एंड आई केम अप विद माई कोर्स फॉर 28,000 रुपीज. Okay. तो द फर्स्ट फ्यू वेबिनार्स दे वर लाइक बॉम्ब्ड. Right. नथिंग इज हैपनिंग. राइट. तो एवरीबडी इन द मार्केट had this opinion. Even जैसे राहुल भैया का भी जो कोर्स था कम्युनिकेशन मास्टर, he was selling it for 6,000 rupees. Right. He had that funnel, उसके ऊपर अपसेल्स वगैरह, लेकिन the top of the funnel was 6,000 rupees. Right. कि इंडियन मार्केट में यही चल रहा है, राइट? एंड मेरा फेस was 28,000 rupees. उसके ऊपर अपसेल्स जो होंगे वो अलग होंगे. Right. तो इंक्लूडिंग राहुल भैया, he also said कि एक काम करते हैं, इसको कम वाला करके इनिशियली इसको कम प्राइस पे सेल करते हैं, एंड देयर वी कैन हैव द अदर थिंग्स. लेकिन मेरे अंदर वो कन्विक्शन था हमेशा से कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले मेरे को इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करने का एक्सपीरियंस है, एंड दैट एक्सपीरियंस इज लाइक गोल्ड. राइट. एंड मैंने वहां पे इतना बेचा है जितना बाकी लोगों ने नहीं बेचा है. आई नो दैट. राइट. तो एंड नोबडी कैन कंपेयर मी इन इंडिया. करेक्ट. तो मैंने कहा यार मैं वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, मेरे को पता है मैं प्रीमियम क्वालिटी लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को उसका प्राइस वैसा ही रखना है. एंड लिटरली आई वाज नॉट इवन कंपेयरिंग कि इंडियन मार्केट में कोई कैसा कर रहा है, क्योंकि मैंने पूरा काम ही इंटरनेशनल मार्केट में करा है. तो वहां पे कोर्सेज का जो लो टिकट वैल्यू है वो 397 497 है. तो मैंने भी 397 डाल दिया, 28,000 रुपीज. मतलब मैं तो देख ही नहीं रहा था कि इंडिया में कोई क्या कर रहा है. एंड आई ऑलवेज हैड दिस, क्या बोलूं मैं, कॉन्फिडेंस के लो, राइट, नॉट टू गो इनटू द जोन ऑफ सुपीरियरिटी, लेकिन कॉन्फिडेंस के लो कि भाई मैं अच्छा ही सिखाऊंगा, मेरे को पता है मैं बहुत अच्छा सिखाऊंगा. तो दैट कन्विक्शन इन द प्रोडक्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, दैट केम फ्रॉम द एक्सपीरियंस, दैट केम फ्रॉम द रिजल्ट दैट आई हैड जनरेटेड. कि यार मैंने इस चीज को करके मिलियंस जनरेट करे हैं, तो मैं इसका 28,000 रुपीज क्यों नहीं चार्ज करूंगा. करेक्ट. राइट. तो अगेन, सो देयर वर पीपल, जैसे आपने बोला ना कि कंपटीशन था, तो वो कंपटीशन था. मेरे को भी पता था लोग इंडिया में उतना बेच रहे हैं, लेकिन मेरे को पता था जिस लेवल का काम मैंने करा है वो किसी और ने नहीं करा. राइट. तो दैट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस
I said कि मेरा product इतने का ही होगा, and because of that I came into the market. So that was my entry into the Indian market. Okay. And I sold it like crazy. Okay. Right. हमने उसे मतलब एक पॉइंट फिर ऐसा आ गया था जिसमें मैंने उसे रोज का 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे पे ऑटोमेट कर दिया था. एंड मेरा जो टोटल इन्वॉल्वमेंट था वो था एक हफ्ते का 2 घंटा, जिसमें मैं कस्टमर्स का जाके Q&A सेशन करता था. बाकी इट वाज फुल्ली ऑटोमेटेड. एंड आई वाज नॉट इवन स्केलिंग इट, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा स्केल हो सकता था, लेकिन आई वाज नॉट इवन स्केलिंग इट बिकॉज वो जो कैश फ्लो था मैं उससे यूज करके उससे फ्लेक्सी फाइनेंस को बिल्ड कर रहा था. तो मेरा पूरा टाइम उसके अंदर जा रहा था. क्योंकि अब आप इसको स्केल करोगे, फिर सपोर्ट टीम को एनहांस करोगे, सेल्स टीम को एनहांस करोगे, आपके पास उतना टाइम नहीं है. इतना ऑटोमेट हो गया, इतनी डिसेंट सेल्स टीम पे इतना ही रखते हैं. राइट. तो फिर जब आपका अल्टीमेटली फ्लेक्सी फाइनेंस एंड टाइमलाइन डोमिनेशन इज सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम. Okay. It is helping people in making more money online in terms of digital needs, right? वो सिर्फ कोर्स था, यहाँ पे ये था. तो जब तक फ्लेक्सी फाइनेंस आया तब तक तो मेरे पे ऑडियंस भी थी, मार्केट में सेल करने का एक्सपीरियंस भी था, तो वहां पे कोई डाउट नहीं था. Okay. डाउट वाला फेज वो वाला था. राइट. तो वहां पे इस चीज को बीट कर पाए बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस कि आपको पता है आप अच्छा करोगे. So because timeline domination worked for you, you didn't give much thought on FlexiFunnels. You just connected the two and you're like, okay, this. And वही कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं ना. Got it. क्योंकि उसके लिए मेरे को कोई नया मार्केट कार्व आउट नहीं करना है, उन्हीं को वो प्रोडक्ट चाहिए. So you already created a market, and so there your confidence came from the fact that you already have a marketplace to sell this product. Right. लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम जो आई थी, सही में आई थी, जो कि मेरे को लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरे को उस तरीके का फियर फील हुआ था. राइट. एंड दैट वाज so before that Flexi Funnels में आपको पता है कि Karthik is the partner. You met him at the event, right? So he is the CTO, he handles the tech team, right? And he is also a big name in the US market, right? Bigger than me in the US market. In terms, his photo has come on the homepage of PayPal. Wow. PayPal.com के homepage में उसकी photo yes, for Gopal's event, he was telling me. Yeah. So he used to, so जो हमारा पार्टनरशिप का स्टार्ट हुआ था फ्लेक्सी फनल्स का, so I told him कि bro ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट के अंदर, there is not a tool like this, and with our experience, क्योंकि you have so much of experience of working with the funnel builders, I have so much of experience working with the funnel builders, and हमारा मार्केटिंग का भी एक्सपीरियंस है, so we create that unique proposition, and now I also have an audience, right? जो मैंने बनाया है, and I'm also ऑडियंस के साथ साथ मैं उन्हें बेच भी रहा हूँ. एक तो होता है ऑडियंस सिर्फ आपने सोशल मीडिया कंटेंट से बनाया, right? I have a selling audience. दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो मैंने कहा ब्रो एवरीथिंग इज ऑल सेट, आप अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके आओ, मैं अपना मार्केटिंग एक्सपर्टीज लेके आता हूँ, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं. तो until a decent amount of time Karthik was paying the salaries for all the development team. Okay. And everything around it, operation support, testing team वगैरह, उसकी सैलरीज मैं बेयर करता था. लेकिन उसके बाद फिर एक फेज वो आया कि अब कंपनी को लॉन्च करने का टाइम आ गया है, तो अब जितनी भी सैलरीज हैं अब वो सिर्फ कंपनी के थ्रू ही करेंगे. Okay. वो हमारा पहले से डिस्कशन था फ्रॉम द डे नंबर 1. तो जब वो सैलरी का यहाँ पे आया, एंड नाउ यू आर नॉट इवन सेलिंग द प्रोडक्ट, अभी तक प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपका सैलरीज का नंबर हैज मोर देन ट्रिपल्ड. तो वो एक उस समय एक छोटा सा फियर आया था दिमाग में कि यार मतलब क्या होगा. And I discussed it with my HR also because I was very close to her in terms of private discussions also. तो एंड शी, क्योंकि हम वही सैलरी प्रोसेस करने के लिए एचआर के पास ही वो टू एंड फ्रो होता था, राइट? एंड शी सेड जब मैंने ये देखा मेरे को भी एकदम से फील आया सौरभ कि हाउ इज इट गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि अभी तक तो चल रहा था पिछले इतने समय से, लेकिन फिर अगेन पता था कि कोई और ऑप्शन नहीं है, करना तो है ही, तो करेंगे फिगर आउट. फिर गाड़ी चालू कर दी, अब चल रहा है. अरे लव इट, दैट्स प्रीटी ऑसम. दैट्स तो फियर तो आता है. हाँ, अल्टीमेटली इट डज कम इन. एंड आई थिंक so for me this statement of take action despite fear I feel it's not just cliched. I feel बोलने में तो काफी easy है, take fear despite action. So if you were to say it, take action, I said take fear despite action. चलेगा. Take action despite fear. So if you were to say take action despite fear, how would you simplify it in a way that it's actually actionable to somebody? Because let's say if I'm fearful of something, what happens is my entire body freezes. That's how your body is designed, right? For it to freeze and for it to run away. Because all blood, when the fear comes in, blood goes to your limbs as opposed to going to your brain. It made sense thousands of years ago when you had to run from an animal. You see an animal, fear kicks in, you have to run away. And that's where blood has to go to your limbs. But today also the same thing happens. Right? And we use that blood in the limbs to start scrolling on Instagram and we are seeing a lot of shit. And that's how you deal with fear today. So this take action despite fear, as much as it makes sense, it doesn't really work in the direct way. So
I just want you to tell me that day when you experienced fear. Yes, you did it, but how did you go to the point from, okay, I'm experiencing fear, okay, this is scary for me, to actually saying, okay, let's do this now? What is that phase? Yeah, that phase is simple. जैसे अभी आपने बोला ना, there are a lot of ways in which people tackle with their fear. Right. Number one, they will go to social media. वहां से उनको dopamine hit मिलेगा. They will start doing that. हर एक ने ना अपने comfortable zone बना रखा है. Right. जो उनका दुनिया की हर प्रॉब्लम से निकलने का समाधान है. Correct. किसी को आपने देखा होगा, कुछ भी होता है, let's suppose they will order their favorite food. आपने देखा होगा, पिज्जा खा रहे लगातार, उन्हें भी नहीं पता है क्यों, लेकिन सबकॉन्शियसली मतलब वो मंगा के खा रहे. So हर एक का ना एक मैकेनिज्म बना हुआ है टू ओवरकम देयर नॉन कंफर्ट जोन. किसी का सोशल मीडिया है, किसी का खाना है, किसी का कुछ और होगा, जो भी है, पॉर्न होगा, व्हाटएवर इट इज, XYZ. राइट. लेकिन द ओनली वे टू ओवरकम दैट, एंड इफ यू रियली नो कि ओवरकम करे बिना आपका अगले लेवल पे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इफ यू रियली वांट टू ओवरकम दैट, व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि द ओनली वे टू ओवरकम दैट इज टू एक्चुअली गो थ्रू दैट पेन. राइट. तो वो जो रियलाइजेशन है, वो वाली चीज आपको फिर उस चीज के लिए फोर्स करेगा कि भाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. आप उसको टाल सकते हो, लेकिन फिर आपको उस रियलिटी को दोबारा से फेस करना ही पड़ेगा इन अ फार बिगर लेवल. अभी हो सकता है वो थोड़ा कम में टैकल हो जाए, कल की डेट में जब वो बड़ा होके आएगा तब वो और बड़े लेवल पे होके आएगा. राइट. सो एवरीथिंग जिसमें आप हाफ इन हो, वहां पे यू नो यू विल फील लाइक कि करके देखता हूँ, होगा नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी. राइट. So you have to commit all in कि जाके करो, एंड उस बीच में फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन मत लेके आओ. One more way of thinking about it is, जैसे टोनी रॉबिन्स का मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था यूएस में, मैं ClickFunnels के इवेंट में गया था. He was one of the speakers over there. तो वहां पे I was into a business partnership, ठीक है, जिसमें कि where I had this realization, जिसमें कि आपके होने लग जाते हैं ना, जिसमें थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं हल्के फुल्के, एंड यू रियलाइज कि ये अब वर्थ इट नहीं है, या फिर आपका विजन वो वाला नहीं है. लेकिन एट द सेम टाइम आपके शायद किसी के साथ ये वाली चीज हो सकता है, इस समय उनकी रिलेशनशिप में हो रही होगी, राइट, पर्सनल रिलेशनशिप में या फिर बिजनेस रिलेशनशिप में, जिसमें कि आप एक उस हार्ड कॉन्वर्सेशन अवे हो, जिसमें कि आपको सही में बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन एक बार आपने सारी चीजों को लेट गो करा, अपने मुंह से बोल के सामने वाले को लेट गो करा, वो एक रात जो भी होगी जिसमें आपने वो हार्ड कॉन्वर्सेशन करी, उसके बाद देन यू विल ऑलवेज सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी दिस. अगर आपको यहाँ पे जाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा. सो दैट अप्लाइज टू बिजनेस ऑल्सो, दैट अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, कि वो हार्ड वाला पार्ट है उसको गो थ्रू करना ही पड़ेगा. जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे. जितना टालते रहोगे वो आपके लिए भी मिजरेबल वाला टाइम है, वो सामने वाले के लिए भी मिजरेबल वाला टाइम है, एंड यू विल कीप किकिंग योरसेल्फ. अगर आपने गो थ्रू नहीं करा उस पेन को, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल वैसे भी नहीं आने वाला है. सो व्हाट इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, व्हाट आई वांट पीपल टू रिमेंबर फ्रॉम दिस वर्डिंग्स इज कि भाई जो टोनी रॉबिन्स का वो वाला दिन था, मेरे को वो चीज, उसने मेरे को उस चीज का रियलाइज करवाया कि आप कितने टाइम से वो हार्ड कॉन्वर्सेशन करने से डर रहे हो, ये सोच के कि सामने वाले बंदे को कैसा लगेगा, या आप वो जो कॉन्वर्सेशन है वो टफ होने वाली है, लेकिन उसकी वजह से जो आपने, उसने पहले पेपर पे कुछ ड्रीम्स लिखवाई थी, क्या उस ड्रीम तक पहुंच पा रहे हो? द आंसर इज नो. तो कब करोगे? जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, राइट. मतलब कोई बहुत ही एक्सेप्शनल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बंदे को आपको ऐसे झंझोड़ना पड़ता है, राइट. तो दैट सेम नाइट आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि ब्रो नहीं हो रहा है ये वाली चीजें, लेट्स हैव आवर ओन पाथ्स, एंड दैट डे वी वर फ्री एंड वी आर ग्रेट फ्रेंड्स, एंड उसके बाद मेरी अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड दैट बिकेम द बेस ऑफ दैट रियलाइजेशन कि अगर हर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो हार्ड पाथ से तो जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे अराउंड इट. तो वहीं से ही जाना पड़ेगा. So glad that you stated that, because I feel what you said, dealing with fear, at least the way I have learned to deal with fear at this point is, earlier this is, completely summarizing what you said in fancier words, like I've been doing. So earlier my way of dealing with fear, like you said, was Instagram or eating food. It's all input, right? When something goes wrong in your life, you start taking in more content, either food or social media, whatever, you start inputting. But the actual way to deal with fear, like you said, go do the difficult thing. The actual way to deal with fear is output. Correct. And at this point, the way I do it is, I love this, because when I feel like I'm freezing, I pick up my pen and I start writing. It could be 1 page, 2 page, 3 pages, 4 pages, till that fear no longer
holds me. So because like I said, the energy moves to your hands and I start writing, the output calms me down and I'm back into a position where I can actually think about what to do. Like you said, you went and had the hard conversation, which is the output that led to you moving on and that you being good friends with the other person. Right. But yeah, that's the way, I guess. It's pretty awesome that you said it. Yeah. And I believe that again, जैसे आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था ना कि there are strategies that are available to everybody. Right. लेकिन वो strategies से ही आपका रिजल्ट नहीं आएगा. हाँ. This is like a balancing act that you have to run in, जो कि आपको आपके टीममेट्स के साथ भी रन करना है, आपके जो आपका पार्टनर है, स्पाउस है, जो भी है रिलेशनशिप, उनके साथ भी मेंटेन करना है, फ्रेंड्स के साथ भी मेंटेन करना है. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज having a clear conversation. Right, absolutely. So that this matters a lot, and specifically the hard conversations जो कि आपको करनी है. Think about a person जिसका कि एक अभी तक का एक फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, जो कि उनको पता है कि हफ्ते में 2-3 बार तो वीकेंड पे जाना ही जाना है बाहर. Right. एंड नाउ दिस पर्सन इज कमिंग इनटू अ जोन जिसमें कि वो अपने करियर को लेके सीरियस हो रहा है, लेकिन दोस्तों का कॉल आ रहा है, तो उसके लिए हार्ड कॉन्वर्सेशन क्या है, उसको मना करना. Right. लेकिन वो मना नहीं कर पा रहे. Correct. तो अब वो वहां पे पार्टी में जा भी रहे, लेकिन वो जिस इंटेंसिटी से पार्टी को पहले एंजॉय करता था वो नहीं एंजॉय कर रहा है. इनफैक्ट ही इज फीलिंग मिजरेबल ओवर देयर, लेकिन वो मना भी नहीं कर पा रहे. करेक्ट. तो अगेन दैट इज आल्सो सिंपल हार्ड कॉन्वर्सेशन, जो कि अभी अब हम देखेंगे हमें लगेगा सिंपल है, लेकिन उसके लिए वो जो पर्सन उस जोन में है उसके लिए वो हार्ड है, क्योंकि वो उस दोस्तों को कैसे मना करे जिनके साथ वो पिछले 5 साल से ग्रो अप हुए. राइट. उनको कैसे मना कर दे कि यार मेरे को अब तेरी कंपनी नहीं पसंद है जितनी पहले पसंद थी, या अगर पसंद भी है तो भी मैं तेरे साथ टाइम एंजॉय नहीं करना चाहता. राइट. क्योंकि मेरे को अब ये करना है. So with time, we need to realize that आप change होगे. And the biggest, baddest thing that you can do to yourself is कि अगर आप change नहीं होगे. Right. क्योंकि people talk about कि भाई तू change हो गया. And I feel sad about भाई तू change नहीं हुआ. Think about it. तो वैसा ही है यार. Makes sense. क्यों नहीं change करा तूने अपने आप को? Right. Let's say there's so many people out there who are at this level of 2017, 2015 Saurabh Bhatnagar right now. And if they were to take 3 steps or 5 steps, 5 very specific steps. Now, the thing is, like you said, since you brought this topic of strategy up, everybody is on the lookout for strategies, and honestly, that's how it will sell, right? When you say that I have this new strategy, the proprietary strategy, I have this magic formula, this formula, that will change everything for you. People want to believe that because, again, your mind always wants to take the easy path. Correct. Like the hard conversations. The hard conversation is not all that hard, but you have to step up and do it. Correct. Right? But the actual superhuman building with whatever you've done for the last 10 years, 12 years, you've been doing the same thing. Now, see, initially when I was looking at the 4,500 people event, I'm like, wow, this is huge. Of course it is huge. But now that I hear your story of this huge event that you did in 2015, the Dehradun wala, the celebrity thing, now that I realize that you've been in this space for a long time. Right. And the confidence to do this event has come because you've been doing it from 2014, 15, Correct. and not something that you decided on 23 and decided to do it at that time. Correct. Right? Correct. So everybody goes wrong there, according to me, where they feel like there is one magic formula that Saurabh got, and if I had got it, see, people want to believe this one thing very strongly. There's one magic formula that Saurabh has, and second one is if I had got that formula, I would have done better than Saurabh. Correct. Right? Correct. I'm sure that's a general thought that everybody feels. Now, this magic formula does not exist, point 1. Correct. So I want you to tell me the 3 or 5 boring steps that one has to take to become the 2023 Saurabh Bhatnagar. Okay. सबसे पहली चीज आई विल एक स्टेप पीछे हटूंगा मैं, जो अभी आपने चीज बोली ना, ये चीज हमारे साथ बहुत बार हुई है. लेट्स सपोज जैसे मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ ना, वी आर हायरिंग, तो लॉट ऑफ पीपल मैसेज अस कि सर मेरे को रख लो, आई विल वर्क विद यू फॉर फ्री. एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर वर्क, जिसमें आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन लेट्स सपोज या फिर लेट्स सपोज मोर देन द टैलेंट यू आर लुकिंग फॉर द वर्कफोर्स, राइट, जो इनिशियल वो वाला फेज होता है. तो मैंने इनिशियल वो वाली हायरिंग करी भी थी, ठीक है, क्योंकि द मार्जिन ऑफ एरर इनटू वर्क वाज आल्सो बिग. अब वो कम है. अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई एक पर्सन हमारे सपोर्ट चैट पे गलत रिप्लाई भेज दे, तो वो मार्जिन ऑफ एरर भी कम है. सो नाउ वी हैव टू स्पेसिफिकली लुक फॉर टैलेंट. लेकिन उस समय पे वी हैव डन दैट. तो वहां पे ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हुई है कि एक बंदा आया, 2-3 महीने काम करा, एंड दे वर लाइक वो छोड़ के जा रहे हैं.
क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्योंकि मेरे को लगा था कि आपके साथ रहूंगा तो कुछ मैजिक सीखने को मिलेगा, वो सीक्रेट सीखने को मिलेगा जो आपका है। राइट लेकिन आप तो काम कर रहे हो यार, आप तो कुछ मतलब कुछ सीक्रेट मेरे को सीखने को ही नहीं मिला। एंड वो फिर वो यहाँ से भी डिसअपॉइंट होके गया कि मेरे को सीक्रेट नहीं सीखने को मिला। कि आप तो आके यही चीजें करने में लगे हुए हो जो आप, लेकिन हमने कहा भाई यही करते हैं और क्या करें। So yes, that secret is not there. It is all made up of those boring steps, right? I mean, as a marketer, मैं उन्हीं boring चीजों को आपके सामने fancy करके बताऊंगा। Honestly, मतलब you know, that's the biggest reality. मैं अपनी उसी boring चीज को जो मैं आपको पहले एक दूसरे तरीके से बता चुका हूँ, मैं उसी को अब आप एक दूसरे तरीके से बताऊंगा। Right. For example, मैं एक वीडियो में आके आपको बोलूंगा कि for selling, your conviction on your product matters the most. Correct. लेकिन जो मेरा सेल्स वीडियो होगा, मैं उसमें आके बोलूंगा आई विल टेल यू द वन बिगेस्ट सीक्रेट जिसकी वजह से यू विल बी एबल टू सेल, राइट, एंड नाउ यू विल फील हुक्ड कि ऐसा क्या वो बिगेस्ट सीक्रेट है, राइट। और फिर अब जब मेरे कोर्स का पार्ट बनोगे तब मैं आपको वो चीज पूरी स्टोरी के साथ बताऊंगा जैसे मैंने इस पॉडकास्ट में बताया। राइट। लेकिन अल्टीमेटली वो सारी बोरिंग चीजें काइंड ऑफ यू नो यू ऑलरेडी नो। फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे 3 सिंपल पार्ट्स होंगे एक बिजनेस के। एक पार्ट होगा आपका फनल के अंदर आपका लैंडिंग पेज आ जाएगा, जो भी आपके पेजेस हैं, लेट्स सपोज वेबिनार रजिस्ट्रेशन पेज है या कॉल बुकिंग पेज है या फिर लेट्स सपोज आपका सेलिंग पेज है या रीप्ले पेज है, जो भी है, जो भी वेबसाइट के एलिमेंट बन रहे हैं, आपका पेज आ जाएगा। उस पेज पे लिखी हुई कॉपी राइटिंग आ जाएगी जो आप अपने वर्ड्स लिख रहे हो सेल्स पेज के ऊपर। ये आपका फनल रेडी हो गया पहले स्टेप में। फिर अब इस पे फनल पे ट्रैफिक कैसे भेजें, अब उस ट्रैफिक के लिए हर बंदे का एक अलग एक्सपर्टीज हो सकता है या फिर वो गेन कर सकता है। फेसबुक एड, यूट्यूब एड, गूगल एड्स, सर्च एड्स, या फिर मे बी ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक के अंदर भी इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक या यूट्यूब, व्हाटएवर इट इज, जो भी चीज आपका वे है। लेकिन अल्टीमेटली फनल होगा, ट्रैफिक होगा, एंड देन यू नीड टू लर्न द थोड़ा बहुत सेल्स का स्किल। जिस भी मॉडल पे आप सेल कर रहे हो, या तो अगर आप डायरेक्टली सेल्स पेज पे सेल कर रहे हो तो आपका सेल्स का स्किल हो गया कॉपी राइटिंग। करेक्ट। अगर आप फोन कॉल पे सेल्स कर रहे हो तो फोन कॉल वाला स्किल हो गया। अगर आप वेबिनार पे सेल कर रहे हो तो वो वाला स्किल सेट हो गया। तो बेसिकली सेल्स। तो एट द एंड ऑफ द डे यही ओवरऑल स्किल सेट्स हैं, यू नो, दैट यू नीड टू मास्टर। आपको कोई एक तरीका लर्न करना है जिसकी वजह से यू कैन सेंड कंसिस्टेंट ट्रैफिक टू योर फनल, एंड देन यू नीड टू लर्न द वे कि आपका जो फनल है वो फनल कैसे कन्वर्टिंग बना सकता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें और डीप में आ जाती हैं। जैसे हमने बात करा था नो ब्रेनर ऑफर, कि यू नो उस ऑफर को कैसे और ज्यादा पर्सुएसिव बनाए कि वो लोगों को, सामने वाले को ऐसा फील आए कि अगर मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ तो मेरे को 1 लाख की वैल्यू मिल रही है, वैसे 10 लाख की वैल्यू मिल रही है, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर वो उसके अंदर की पर्सुएशन वाली चीजें आ जाती है। एंड यस, सो वन मोर स्किल सेट दैट समबडी नीड्स टू लर्न इज इन्फ्लुएंस, persuasion. That is something that will always help somebody. So there are 2 books that I personally love a lot. एक इन्फ्लुएंस बाय डॉक्टर रॉबर्ट कैल्डिनी एंड प्रीसुएशन, उन्हीं की ही बुक है, पढ़ी हुई है यहाँ पे। So it's a red book only, no? So I correct. Persuasion, which is like a second part of उसी इन्फ्लुएंस का बुक, डॉक्टर रॉबर्ट कैल्डिनी। तो वो दोनों, अगर आपने थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वाली चीजें, सॉरी पर्सुएशन वाली चीजें सीखी, पर्सुएशन से भी बिगर वर्ड वुड बी साइकोलॉजी। राइट, कस्टमर को समझो तो सही। राइट, या फिर लोगों के नेचुरल बिहेवियर को तो समझो, द वे दे वॉक, द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव इन सर्टेन सिचुएशंस। फॉर मी अगेन सी, जो आपने बोला ना सौरभ भटनागर कैसे बने, वो आप अपने एक्सपीरियंसेस से बनते हो। राइट, कोई बंदा शायद उस चीज को सीखेगा बुक्स पढ़ के। इन माई केस आई वॉज एबल टू लर्न दैट क्योंकि जो हम यूएसपी वाला बिजनेस करते थे, जिसमें हम कूपन सेलिंग करते थे, उसमें मेरे पे जरिया नहीं था इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि मेरे को तो फेसबुक ऐड आता नहीं था। तो अपन डोर टू डोर जाते थे। तो 4 साल तक आई वुड हैव इंटरेक्टेड विद एटलीस्ट 50,000 प्लस पीपल ऑन अ 1-to-1 लेवल। राइट, तो अब वो बातें करने का इतना आइडिया समझ में आ चुका था कि मेरे को पता है कि सामने वाले बंदे का रिस्पॉन्स क्या आने वाला है। राइट, तो यू नो यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पीपल टू दैट लेवल। लेकिन वो कहीं बुक से नहीं आया, वो किसी कोर्स से नहीं आया, क्योंकि वो रोज करा उस काम को। सो वन कैन सी दैट फेज ऑफ 4 years कि जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, बट आई सी दैट फेज कि जिसमें मैं बातें करना सीख रहा था, जिसमें मैं सेलिंग करना सीख रहा था, जिसमें मैं लोगों से पीपल स्किल्स सीख रहा था। राइट, पीपल स्किल्स इज अ ह्यूज स्किल सेट जिसको वी वर लर्निंग। तो उसके बाद जब उसी चीज को मैंने सही जगह पे पुट करा तो उसके रिजल्ट मिल गए। जब उसी चीज को मैं गलत जगह पे पुट करा था, रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे हमारी कूपन बुकलेट होती थी, उसे हम 200 रुपए का सेल करते थे। ठीक है, अब उस कूपन बुकलेट में हमारे 50-60 वेंडर्स थे देहरादून के, जो कि हम उसमें अलग अलग कूपन देते थे, सलून के, जिम के, रेस्टोरेंट के, हर तरीके के। तो जब मैं लेट सपोज मैं रामिया को कूपन बुकलेट दिखाने गया, तो मैं रामिया को पहले वो सारे कूपन दिखा रहा हूँ, देखो ये भी है, देखो ये भी है, देखो ये भी है, देखो ये भी है। तो अगेन आई एम अ न्यू सेल्स पर्सन, जिसको मैं उसको सारे कूपन दिखा रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि जो फीमेल्स हैं उनको मेरे को बस जो वहां का टॉप सलून है उसकी टॉप डील दिखानी है।
Right. तो ये हेयर स्पा की डील है, ये 2000 की है, मेरे कूपन पे आपको 1000 की मिल रही है, मैं आपको कूपन पे 200 की दे रहा हूँ, Right. तो आपको 800 रुपए का फायदा हो रहा है, मैं उसको रिमेनिंग 59 कूपन दिखाई नहीं रहा हूँ, सिर्फ वो एक चीज दिखा रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू मेक दिस Makes sense. तो अगेन ये छोटी छोटी स्किल्स तो आपको काम Correct. करके ही आ रही होंगी. Correct. Makes sense. Yes. लेकिन अगेन अगेन सो इन टर्म्स ऑफ द बोरिंग स्टफ, ट्रैफिक जनरेशन आपको जो जिस तरीके से समझ में आए, अगर आपको लगता है कि आप कैमरे के सामने अच्छे हो, कंटेंट वगैरह अच्छे से बना लोगे, तो वो से शुरू कर दो, वहां से ट्रैफिक भेजना शुरू कर दो, या फिर पेड ट्रैफिक को थोड़ा बहुत सीख लो. एंड आई बिलीव कि पेड ट्रैफिक इज समथिंग जो कि हर एक को सीखना ही चाहिए. Right. क्योंकि यार दुनिया की आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, इनफैक्ट आप अपने बचपन का इतिहास टटोल लो, बचपन से लेके आज तक आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट वो हैं जिसको कि आज तक किसी एडवर्टाइजर ने पे करके आपके सामने लेके आए. Makes sense. थिंक अबाउट द बाइक, थिंक अबाउट द कार, थिंक अबाउट द लैपटॉप, थिंक अबाउट द बुक्स, थिंक अबाउट एवरीथिंग. For sure. For sure. ऐसे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स जिनका कि जिनको कि किसी के पास एडवर्टाइज करने का बजट नहीं है, वो आपके सामने कभी आएंगे ही. That makes sense. सो मे बी दिस फोन, इस फोन का बनने का लागत शायद 10,000 रुपए होता होगा, जो कि मार्केट में 1.5 लाख रुपए का बिकता है. लेकिन बिकॉज ऑफ दैट बिग एडवर्टाइजिंग चैनल एंड स्पॉन्सरशिप्स एंड सो मेनी, दैट्स व्हाई इसका प्रोडक्ट का वैल्यू इतना हो जाता है. राइट. सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो एडवर्टाइजिंग का बजट भी होना चाहिए, वो एडेड होना चाहिए, तभी आप लोगों तक पहुंच पाओगे. No, that makes sense. I think that's a very common mistake that most. Exactly. So these basic skills: funnel building, copywriting, traffic, and then learning a little bit about psychology, learning, doing sales. I mean, the best way to do it is, जैसे मैंने तो मार्केट में उतर के करा, सामने वाला बंदा just start doing sales. Right. I mean, the first thing you just start doing sales. Even if you are bad at it, just start doing sales. So gradually you will become better at it. जैसे मेरे साथ वो कूपन वाली स्टोरी हुई, आपके साथ कोई और चीज होगी. एक दिन ऐसा पक्का आएगा, आपने 4-5 खराब वेबिनार्स करे, एक दिन ऐसा पक्का आएगा कि आपने कोई नई चीज ऐसे ट्राई करी, एंड यू विल टेल टू योर रूममेट कि भाई आज तो 2 सेल आ गई, आज मैंने पता ये करा था. And gradually it will be a build up of those small little things. It's crazy, I remember still on the first webinar sale that we made. I think this is our 7th or 8th webinar that had gone bad, right? 7th or 8th in the beginning, 7th or 8th webinar, no sales, 0 sales, and we were freaking out if this is even our thing. And the first webinar, where one person paid 500 rupees. So it was a 5,000 rupee product, and I said the blocking fee is 500 rupees, and he paid 500 rupees, and I could not believe for my life that somebody has paid 500 rupees. And I remember how we celebrated that day. Wow, and this is all connecting because you also mentioned, right? You forget about the distance that you've come. Yeah. From there, in your story, you mentioned that $20 became 200 overnight when you ran ads. That was the biggest thing. Right. So pretty crazy that 500 rupees that came in. And then what also happens, this is one thing that I want to ask you as well. That excitement of 500 rupees came in, but our mind, I feel, is devised in such a way that initially that excitement comes in and it quickly turns into fear. 500 rupees aa gaya, and my next immediate thought after 5-10 minutes of celebration was, what if he doesn't pay 4,500? 100%. 100%. So it is crazy. I didn't think for a minute. See, 7-8 webinars have gone bad. That's a different story. It worked. I celebrated for 5 minutes, but after that 5 minutes, my thought is, what if this, does this happen to you? 100%. 100%. सबके साथ होता है भाई. वही बात, अभी हम यही तो बात कर रहे थे ना कि अब ये हो गया, लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट क्या? Right. And I believe कि a lot of people will also put it into bad light. कि वो नेक्स्ट क्या वाला जो फीलिंग है ना, क्योंकि अब यहाँ पे जो ग्रेटिट्यूड वाले कोचेज हैं वो आ जाएंगे कि हैव ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाटएवर यू हैव. Right. है यार, लेकिन नेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वर्कआउट करूंगा. I like this statement, but yeah, so it's always it's the same as what you've spoken in your TED talk as well. क्योंकि मैं सेटल नहीं करना चाहता ना यार. मैंने अपने लिए वो बात सेट ही नहीं करा कि मेरे को यहीं तक जाना है. बिकॉज द कॉन्वर्सेशन इज नॉट हैपनिंग अबाउट कि ये लेवल अटेन करना है. द कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग अबाउट कि ग्रेटेस्ट कैसे बनना है. राइट. अब ग्रेटेस्ट बनने के लिए तो यू हैव हर्ड स्टोरी. अब आपको बहुत सारे लोग स्टोरी सुनाएंगे 100 लोगों की. राइट. मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कोबे ब्रायंट की. वो तो रोज सुबह 4 बजे बास्केटबॉल कोर्ट पे पहुंच जाता था. राइट. तो अगेन मैं कंपैरिजन दूसरे बंदे से कर रहा हूँ. तो यू आर नॉट रॉन्ग, लेकिन आई एम राइट एट माय ओन प्लेस. No, absolutely. That makes sense. It's for that one perfect shot that he takes, the lakhs of shots that he would have taken where nobody else is watching, which makes so much sense. 4 o'clock, who's there? Nobody's there to cheer, like you said. Right. That initial excitement is not even there. Maybe first day when he told his friends that I'm going to start at 4 o'clock, maybe they would have cheered, saying, great, let's do this. I think you'll become good. But after the 5th day,
he has to wake up at 4. और वो दोस्ती उसको बोलेंगे भाई तेरी तबीयत खराब हो जाएगी यार. Yeah, that also Those happens. same Yes. people will come back to you. Correct. लेकिन you keep doing it. Right. तबीयत खराब होएगी, still you keep doing it. Right, absolutely. That's awesome. So I think that was a fantastic discussion that we had today. It's a long conversation, very Right. fun एक conversation. छोटा सा मैं इसमें एक ऐड ऑन करना Please, चाहूंगा, please. क्योंकि जैसे आपने अपना पहला सेल का स्टोरी शेयर करा ना, मेरे 2 पहले सेल का स्टोरी है. एक तो हमारा एफिलिएट सेल का स्टोरी है जो मेरे और गौरव का रात को हुआ था. लेकिन आई रियली वांट टू शेयर द अदर स्टोरी. लेकिन सिंस वी आर ब्रिंगिंग इट अप, तो वो एक पहली बार एफिलिएट का सेल आया, हमारा रात को $200 का कमीशन बना था. एंड मैंने गौरव को मैंने कहा यार नहीं, मैं गौरव सो रहा था, मैंने देखा एंड मैं सो गया. एंड सुबह जब हम उठे, सुबह हमारी लेट होती थी उस समय पे, मैंने गौरव को बोला, मैंने कहा यार मेरे को सपना आया था रात को कि हमारे ना कुछ कमीशन बनाए. एंड क्योंकि वो बिलीव ही नहीं था कि वो बनेगा. Right. तो फिर हमने देखा वो सही में $248.5 का कमीशन बना हुआ था. हाँ. तो वो एक मैजिकल हैप्पीनेस था, क्योंकि एफिलिएट कमीशन इज ऑलवेज फुल 100% योर प्रॉफिट. Right. लेकिन हाँ, इससे दूसरी चीज, जब इंडिया में वर्क करना चालू करा था, या वर्क करना चालू भी नहीं करा था ऑनेस्टली, मैंने एक अपना फेसबुक पेज चलाया था. एंड उस समय बस काम ही करना चालू करा था. फॉरगेट अबाउट इंडिया एंड ऑल, ऑनलाइन में ही काम करना चालू करा था. इंडिया इंटरनेशनल की तो बात ही नहीं है. ठीक है. तो एक मेरा पेज था, एक मैंने पेज बनाया था, बीबी की वाइन्स लवर्स. तो उस समय बीबी की वाइन्स बहुत लाइक नया आया था, बहुत हिट हो रहा था. तो मैंने फेसबुक पेज वगैरह मैंने नया सीखा था, मैंने बना दिया. और उसके ना मैंने एक एड में एक छोटा सा ट्वीक करा था, एक एरो वगैरह डाला था, और वो उसके बहुत सारे लाइक्स आ गए थे. अराउंड 50,000 कुछ लाइक आ गए थे, शायद 1,000-1,500 रुपए में. तो मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे एक पोस्ट डाला कि मैंने एक नया तरीका सीखा है फेसबुक पेज पे बहुत ज्यादा लाइक्स लेके आने का. किसी को चाहिए तो मैं उसका केस स्टडी मेरे पे है. Right. एंड आई हैड नो क्लू कि somebody will say कि मेरे को चाहिए. क्योंकि आप खुद अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो कि कोई आपसे क्यों सीखना चाहेगा. Right. उसमें कुछ 40 करीब कमेंट आ गए. एंड सम ऑफ द पीपल हुम यू सी कि यार अभी ये तो बहुत अच्छा बंदा है, अब उनके भी कमेंट है. Right. एंड नाउ आपने बोला हुआ है कि केस स्टडी, वो बनी नहीं है. तो वहां पे मैंने लोगों को मैसेज करा कि मैं अभी बाहर हूँ, शाम को मैं आपको कल दूंगा. Right. क्योंकि केस स्टडी बनी थी. फिर शाम को बैठ के केस स्टडी बनाई. अगले दिन देने की बारी आई. मैंने कहा यार थोड़ा सा गेम करते हैं. एक मैंने सॉफ्टवेयर बाय करा हुआ था, जिसमें क्या होता है, जैसे आप एक पर्सन को लेके आओ, मतलब आपने साइन अप करा, और नाउ यू कैन पुट सम गेमिफिकेशन ओवर देयर कि अगर एक पर्सन 4 को लेके आएगा, 5 को लेके आएगा, तो उसको वो चीज फ्री में मिल जाएगी. वो आप रूल आप सेट करोगे, 4 को लेके आना है, या 1 को लेके आना है, 10 को लेके आना है. अब वायरल ही था. अब वायरल ही था. तो आई थॉट कि मे बी यू नो, सो तो आई वाज यूजिंग दैट. तो मैंने उसको वहां पे लगाया कि मैंने कहा चल लीड जनरेशन हो जाएगा. और तो उसको फ्री में वहां पे डाला कि आप 3 लोगों को लेके आओ, आपको वो फ्री में केस स्टडी मिल जाएगी. और साथ में मैंने एक पेयू का सब्सक्रिप्शन लिया था, पेयू का साइन अप करा था. तो वहां पे एक 500 रुपए का एक बटन डाल दिया कि ये अगर आप चाहो, या तो आप 3 लोगों को लेके आओ फ्री में ले लो, या फिर आप 500 रुपए पे करके पेड ले लो. Right. तो वो पेड वाला ऑप्शन मैंने इसलिए डाला था ताकि जो फ्री वाला ऑप्शन है वो नो ब्रेनर लगे. Right. Makes sense. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब मेरे को फ्री को भी नो ब्रेनर लगवाने के लिए मैं पेड डाल रहा हूँ. Right. क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कोई आपको क्यों पैसे देगा, कोई आपसे क्यों कोई चीज लेगा. Right. एंड प्रोबेबली अराउंड 10-12 पीपल पेड 500 रुपीज. Wow. Okay. एंड मेरे को वो चीज दैट वाज लाइक बिग, क्योंकि भाई 500 रुपए, वो 6,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा है जो आपने पिछले 4 साल में कभी भी नहीं देखा था. Right. एंड वो 500 रुपए जब आपके पास आ रहे हैं, वो 6-7 हजार रुपए जब आपके पास आ रहे हैं, आपको वहां से ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ यार, इफ आई पुट आउट वैल्यू इन द वर्ल्ड, तो लोग मेरे से बाय करना चाहेंगे. मतलब इनफैक्ट इतना बड़े लेवल पर सोचा भी नहीं कि हाँ मेरे से भी कोई खरीद लेगा. तो वो कॉन्फिडेंस आ गया. Right. तो आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अभी अपना पहला प्रोडक्ट, पहला ऑफरिंग, पहला सर्विस बनाने में घबरा रहे हैं कि मेरे से कोई क्यों खरीदेगा, यू नो, यू शुड हियर एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी. आप ये सोचो ही मत कि कोई खरीदेगा. Right. बना दो. Right. Makes sense. एंड देन फिर उसको बढ़ाते जाओ, करते जाओ, एफर्ट डालते जाओ, स्किल सेट्स को अपग्रेड करते जाओ. ग्रेजुअली वही सेम प्रोडक्ट, पहले उसमें से फेसबुक पेज लाइक मैंने सिखाया था. ठीक है. ग्रेजुअली मैं भी बेटर होता गया, चीजें करी, क्लाइंट के साथ वर्क करा, कुछ चीजें करी, और उसको मैं एज अ कोर्स डेवलप करता गया. तो वो $5 का या $6 का प्रोडक्ट ग्रेजुअली मैंने $30 में बेचा. Right. और उसी को ही आगे जाके कन्वर्ट करके टाइमलाइन नॉमिनेशन बनाया, जो कि आगे जाके 2 लाख रुपए पर डे ऑन ऑटोमेशन पे सेल हो रहा था. Right. तो अगर वो छोटा सा 500 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बनता, तो वो टाइमलाइन नॉमिनेशन एंड दिस वाला भटनागर वुड हैव नेवर हैपेंड. That's crazy that you said, which is awesome, because
I think everybody is getting stuck with two words on the internet today. One is vision, one is passion. And on the lookout for this vision and passion, they're not taking any action. Correct. Right. Correct. So, like you said, when you started, there was no thought ki this will become big. Nothing. It's just that let me try it out. Correct. Let me make the free also a great offer so that people give it. Correct. So there was no thought of one day I'm going to host a 4,000. People see that's a good story. कौन से 4,000 लोग आप एक बंदा तो खरीदने को तैयार नहीं है कौन से 4,000 right. So these two things that keep people stuck and going towards action without thinking, I think makes so much of a difference. 100%. एक मैंने स्टोरी सुनी थी और बाद में मैंने उसको रन भी करा था. इनफैक्ट पहले हम एक सिंगापुर में एक हमारे इवेंट के स्पॉन्सर थे, तो उन्होंने हमें टास्क दिया था कि आप इंडिया से कुछ 8-10 लोगों को वहां पे लेके आना आफ्टर द इवेंट. वो हमारे सर्वाइवल इवेंट में स्पॉन्सर थे. तो अब 8-10 लोगों में वो लोग हमसे इकट्ठा तो हुए नहीं, 5-6 हम खुद ही पहुंच गए अपने कुछ जोड़ जाड़ के, क्योंकि अब स्पॉन्सर को कमिट करा हुआ है, तो उसी के पैसों से हम खुद वहां पे जा रहे हैं. तो क्योंकि उसने कहा था कि एडमिशन करवाने हैं बेसिकली, दैट्स अ कॉलेज राइट, दे आर लुकिंग फॉर एडमिशन. वहां पे एक उन्होंने हमें मार्शमेलो चैलेंज करवाया था. मार्शमेलो चैलेंज में क्या होता है, आपको एक वो मार्शमेलो देते हैं, स्टिक्स देते हैं और थोड़ा सा टेप देते हैं, ठीक है, और उसमें वो आपको बोलते हैं कि आपको इससे एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा वो टीम जीतेगी. और हम 12 लोगों को उन्होंने 3 अलग टीम में 4 अलग टीम में बांट दिया. ठीक है, हमने करा. आई रिमेम्बर जब मेरे को वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया, हमारी 3 लोगों की टीम थी, तो पहले हम 5-7 मिनट 10 मिनट से फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और इससे हमारा अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा. जब वो पूरा चैलेंज खत्म हो गया एंड व्हेन वी केम लास्ट इन दैट चैलेंज, तो उसके बाद दे टोल्ड अस अ स्टोरी कि ये जो मार्शमेलो चैलेंज है ना, ये बहुत ही फेमस चैलेंज है. एंड ये दुनिया के नंबर 1 CEOs, नंबर 1 पॉलिटिशियंस, नंबर 1 स्पोर्ट्स पीपल एंड इंजीनियर्स, छोटे बच्चे और हर किसी से कराया जाता है. And the results are simply astounding. मतलब they're talking about the number 1 CEOs, number 1, the top of the top people. जिन्होंने आज तक सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे हैं वो है इंजीनियर ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने उस चीज की पढ़ाई करी है. लेकिन उसके बाद द बेस्ट स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड बाय किड्स, 4-5 साल के बच्चे. नॉट द बेस्ट स्पोर्ट्स पीपल, नॉट द बेस्ट पॉलिटिशियन, नॉट द बेस्ट CEOs, लेकिन वो 4-5 साल के बच्चे. क्योंकि जैसे हम लोग थे ना, पहले जब हमें वो टास्क मिला, अपन सोच रहे थे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 10 मिनट तक से प्लान ही कर रहे थे. लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा, जैसे ही टास्क मिला चालू कर दिया. It falls when they start again. they start again. तो उनको जीतना हारना आउटकम से मतलब नहीं है, उनको उसे एंजॉय करने से मतलब है. एंड दे वर लाइक इन द प्रोसेस. तो उन जब बच्चों के जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही आड़े तिरछे ऐसे ऐसे करके, लेकिन स्टिल दे आर एबल टू मेक द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर सिंपली बिकॉज दे आर लविंग दैट प्रोसेस. रादर देन वो इस जो मैं आप थोड़ी देर पहले चीज कह रहा था ना, कि लोग हमेशा चीजों को 2 बास्केट में डालते हैं. एक कि या तो चीज हो गई या नहीं हुई, लेकिन बीच का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं. तो वो प्रोग्रेस अगर दिख रही है ना, अगर आप कल से बेहतर हो बाय पुटिंग इन एफर्ट्स, देन कीप गोइंग. I think that's beautiful. I think we should start the podcast with this. This is just beautiful. So I think that was a beautiful conversation. So any closing notes that you have, Saurabh? मतलब हमने काफी सारी चीजें क्लोजिंग की है. एक जो मैं अपने मेंटीज को हमेशा 3 चीजें बोलता हूँ. मैं उन्हें बोलता हूँ SB3 लॉज ऑफ सक्सेस. नंबर 1 इज कि आप डेली बेसिस पे 1% इंप्रूवमेंट, कुछ ना कुछ सीखते जाओ. राइट. नंबर 2 इज क्विक इम्प्लीमेंटेशन. जो आपने चीज बोली थी ना कि आप इवेंट में जा तो रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे. राइट. दैट इज व्हाट आई एम प्रोफेशनली अगेंस्ट, कि भाई कम सीखो, लेकिन जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं कर दिया तब तक आगे मत बढ़ो. क्योंकि बहुत सारे लोग अपने डे को डिवाइड ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मे बी पॉडकास्ट देख रहे हैं, व्हाटएवर इट इज. 90% इज जस्ट लर्निंग एंड दे विल फील दैट हिट. जैसे आपको इवेंट में जाने से आता था कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, लेकिन आपका एक्चुअल लर्निंग हो जाओ, इंप्लीमेंट करोगे. तो देखो कम, लेकिन इंप्लीमेंट ज्यादा. इट हैज टू बी 10% लर्निंग, 90% इंप्लीमेंटेशन, द डिवीजन ऑफ योर डे. सो 1% लर्निंग, 90% implementation on a daily basis, and third law of success according to me is 1 revenue generation activity per day. Superb. अगर आप रोज एक कुछ ना कोई रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी करोगे ही करोगे, मे बी दैट ईमेल आउटरीच, मे बी दैट कोल्ड कॉल, मे बी दैट वेबिनार, मे बी व्हाटएवर XYZ, मे बी दैट वीडियो जो कि आपका सेल्स का वीडियो है, अगर आपने एक साल में 365 तीर मारे हैं तो बहुत सारे निशाने पे लगेंगे. That's how it is. So you keep following these three laws of success, automatically you will be getting results. Beautiful. Thank you so much for sharing that. I think that's fantastic. So that was the first episode of Rise of the Superhuman with none other than Saurabh Bhatnagar, and I'm so glad that we got to do this episode, and I'm so glad that it's what is crazy is
I'd like to add to the closing note here. What is crazy is ask, and most of the time you'll get it. The half the time you just find it difficult to ask. So I happened to meet Saurabh for the very first time in Deepak's event. So Deepak had invited me for the event, and I happened to meet Saurabh because he had his FlexiFunnel demo there. And in the demo, in that event, I just told Saurabh about this, and I told him that we're planning on doing this. In fact, we have been planning on doing this for such a long time, and that day, Saurabh was there, we were having a conversation, and something clicked, and I said, Saurabh, why don't we do this podcast? And Saurabh said yes. So this set didn't exist. Nothing existed, because all my podcast so far has been from the studio. And it's a proper set for a one-person thing. Right. And the minute Saurabh said yes, then we started thinking, okay, how do we do this? And then we were still pretty calm till yesterday when you sent a message saying we'll do the podcast. Now we're like, okay, how do we make this happen in a way that it looks nice? Because see, ultimately the production value also makes a difference, and it has to match the message that you put out. So with this whole production value, it's been a beautiful experience in terms of taking action quickly, in terms of putting things together, and all the beautiful things, especially in the story that you've shared, has happened primarily because of the quick action that you've taken. And so I'm so glad that the first episode became a perfect example of taking fast action, 100%, asking 100%. For help, asking for assistance, and just go out there and ask people. And even if they say no, like even if Saurabh was to say that, okay, I'm not available for this time, so what? I've still had a conversation with him, and it would lead to something somewhere. So yes, so I think on that note, let's close this, and I'm pretty excited for what is going to happen. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. And last one है, like, comment, subscribe. Oh yeah, वो भी कर दो, like, comment and subscribe.